ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਉਸ हैदर साहब ਠੀਕ ਉਤਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ हैदर साहब ਹਾਂਜੀ हैदर साहब आप सिर्फ गुजर भाई की बात का जवाब दे दें और अगर आप के अकायद ठीक हैं और मेरे भाई ईमान वाला को गलती लगी है जी जी तो उनके बिहाफ पर मैं आपसे हाथ जोड़ कर माफी मांगूंगा। जी आप ये मेरी आपसे जुबान मैं है। भी मांग लेना और जी आप मेरे भाई मुझे खान साहब कितनी बार माफी मांगेंगे, उनका रोज का काम यही है। ना मैंने चलो अपने अकायद दसो, अकायद दसो जल्दी करो। सुनो मैंने ना आपसे माफी मंगवानी है मेरे सामने ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ मारदा। ना ईमान वाले से मैंने माफी मंगवानी है ठीक है ना कितने हमने मैंने दसो किसी से भी माफी नहीं मंगवानी अपनी अम्मा दे कुछ हाँ ये देखा माशाल्लाह सुनते रसूल रखी है और देखे कि बातें कैसी सुनते रसूल रखी काफिरों के लिए अशुद्धा अल कुफार, मैं कुफारों के लिए शिद्दत पसंद हूँ। माशाल्लाह आपने काफिर तक बना दिया ना। चलो चलो शाबाश अकीदा बताओ जल्दी करो। की बात पे आप और गल्लां ने ये इधर उधर दिया, इधर गल दस तेनू यकीन और गल कर हैदर बड़ा च मर्द बन खसी बनना पे ते मैं गल करना पे और खसिया जनानियां गल कर जल्दी कर, अन्नी दा ना होवे ते तेरे अर्चवला जल्दी कर, जवाब दे अकायद दस अपने भैन के लोड़िया मेरे जवाब दा तेनू ओ चलो चल जवाब दे जल्दी कर भैन के लोड़ियो तुसी ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬੌਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਕੇ ਲੋੜੇ। ਕਾਸ਼ਾ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਪਲੀਜ਼ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਭੈਣੀ ਕਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ और कितनी अच्छी ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹਦਾ ਗੁਜਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਭੈਣ ਕਿਆ ਲੋੜਿਆ। देखो कितनी अच्छी तबलीग ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੀਆ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਚੋ ਸੀਸਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਕੇ ਲੋੜੇ क्या ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਾਈਕ ਪਾਟਾ ਹੈ दस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे च मां का लौड़ा पीछे छुप के अपने प्यो हैदर वड़ाई दे गश्ती दा बच्चा गुजर साहब है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ और चलो जवाब दे गुजर दी गल दा जवाब दियो ठीक है ना भैन के लौड़े। खान साहब समझ आ रही है आपको बात? इधर दस मुसलमान ने इंडिया गड़ा मुसलमान कर मैं मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर कुफार वास्ते शिद्दत रखना वा ਤੁਸੀਂ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਲੋੜਿਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। खान साहब ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰੀ ਕੂਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ। खान साहब अपना माइक ओपन करें और बताएं ਭੈਣ ਕੇ ਲੋੜੇ कि आप ਔਰ ਦੁਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਗੁਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। गल करो आराम नाल गल करो, आराम नाल गल करो, लड़न दी जरूरत नहीं, आराम नाल गल करो मेहरबानी। ईमान वाला ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਬੇ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਵਜਹੁਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਫਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਲੱਗਿਆ ਦਲੀਲ ਮੰਗੋ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਮੰਗੋ ਨਾ ਕੋ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਬੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਵਾ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹੈਦਰ ਵੜਾਏ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਗਲਤ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਹੈਦਰ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਤਾਨ ਲਾਏ ਉਸ ਝੂਠੇ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ कर दो। देखो ये दोनों अहबाब जो हैं इनको कई बार इस बात का बताया गया है, ये जिस ब्रॉड पे चढ़ के बैठते हैं और उसकी पुष्ट पनाही करते हैं वो बंदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने का कायल है। इनको कई बार बताया गया है। मैं कुछ अरसा पहले यार हैदराबाद माइक म्यूट कर देना यार, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात सुन रहा हूँ यार, वो आप म्यूट करो, वो टेक्निकल वजह से कह रहा हूँ, मेरी आवाज गूंज रही है। अच्छा जी मैं देखिए आपकी कितनी बातें मान रहा हूँ, ये लो आप माइक तो म्यूट कर देना। जज़ाकल्लाह। इन दोनों साहिबान को इस बार का काफी दफा मना किया गया कि भाई साहब वो जिस कादियानी नुमा मुल्हिद की वेबसाइट पे आप बैठते हैं, मैं बहरहाल ये कादियानी नुमा मुल्हिद अल्फाज अपने वापस लेता हूँ, जिसकी वेबसाइट जिसकी ब्रॉड पर आप बैठते हैं
وہ साहब का अकीदा ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। इनको बारहा मना किया गया, बजाय इसके कि ये उसका बाइकआउट करते, उसको मना करते कि ऐसा नहीं है, या उसको समझाते, ये मेरे पीछे पड़ गए और मुफ्ती साहब के पीछे पड़ गए। मैं उस बंदे की ब्रॉड पर भी गया बात करने के लिए, ये अब्दुल्ला नामी शख्स जो है वहां पर मुझे बात भी नहीं करने दे रहा था, और बार बार मलक कैसर की पुष्टपनाई किए जा रहा था, बार बार ये पुष्टपनाई किए जा रहा था। इनको उसके बाद भी कई दफा देखा गया है। 10 सेकंड रह गए मेरे, 10 सेकंड। इसके बाद भी उनको कई दफा मना किया गया, लेकिन ये बाज नहीं आए। आज एक बार फिर उसने इस अकीदे का इजहार किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का, और ये दोनों खामोश होके वहां पर बैठे रहे। तो क्या इनकी खामोशी इस बात का सबूत नहीं है कि ये उसकी पसे पर्दा पुष्टपनाई करते हैं? आखिर मुसलमान को कादियानी की ब्रॉड पर जाकर, जहां पर वो अंबिया की गुस्ताखी करता है, कितना मजा आता है, ये इन्हीं को पता होगा। क्यों जाते हैं ये बार बार वहां पर, ये इन्हीं को पता होगा। पसे पर्दा हकायक क्या है, ये क्या चाहते हैं, दीन इस्लाम को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये हैं कौन है, ये किसी को भी अभी तक नहीं पता। इनसे इनके बार बार अकायद पूछे जा रहे हैं, और ये बार बार बजाय 1 सेकंड में अपना अकीदा बताने के बात को घुमा के 2 घंटे लंबा करने की कोशिश करते हैं। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए अच्छा, आपने अब माइक नहीं ओपन करना किसी बंदे ने भी, मैं ना इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। देखें भाई, बात ये है कि आपने बगैर ये बात जाने हुए कि किसका क्या अकीदा है, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दें कि आपको ये किसने बताया कि मलक कैसर का, अब्दुल्ला का या हैदर वड़ैज का ये अकीदा है जो आप बयान कर रहे हैं। आप देख लें, अब भी इसने अपने नाम के साथ उसी मलऊन का नाम दोबारा लिया, मलक कैसर। आप खुद देख लें, अवाम फैसला खुद करेगी। काशी भाई, इसके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। काशी भाई, इसके हैदर साहब मेरी बात सुने आप। जी जी, वो जो मलक कैसर है ना, मैं इस चीज की गवाही देता हूँ अल्लाह पाक की जात को हाजिर नाजर जानकर, मैंने अपने कानों से सुना है, उसके मुंह के अल्फाज हैं कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का कायल है। अच्छा, उसने ये बात नहीं की कभी? कहता हूँ 2 गवाही होगी मुसलमानों की, मैं भी गवाही दे रहा हूँ, मैंने भी सुना है उनके मुंह से। अच्छा, मैंने अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर ये बात की है भाई। अगर आपको इस चीज पे भी शक है तो फिर ईमान वाला भाई राइट है कि आप जो है वो फिर जो ना कादियानियों के सहूलतकार हैं। अगर आपको इस बात पे शक है तो फिर अच्छा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ये बात कह रहा हूँ कि उस इंसान के मुंह से मैंने ये अल्फाज सुने हैं। ठीक है, आप तीनों की गवाहियां आ गई हैं ना, अब बात आगे चलेगी, ठीक है। अच्छा जी, ईमान वाला भाई, आप बताएं कि आपको किसने बताया कि उसका या मेरा या अब्दुल्ला का ये अकीदा है? अब आप बताएं, इन्होंने तो बता दिया। यार भाई छोड़ो अब उस बात को, आप ये बात बता दो कि आपका क्या सोचना है। दैट्स ऑल। खान साहब, बात आपकी एक शॉर्ट एंड सिंपल बात, मैं मानता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे हैं, अल्लाह पाक ने उनको उठाया, बात खत्म। अच्छा, मैं मुसलमान हूँ, मेरा ये अकीदा है, बात खत्म। अब बात ये, जिस चीज का आपको नहीं पता वो मैंने आपको बतानी तो है ना, कि ये बात कहाँ से चल रही है और क्यों चल रही है। असल बात का तो मुझे पता है कि ये क्यों चल रही है और कहाँ से चल रही है। मैं उस बात को आप भाइयों के सामने नंगा करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए यहाँ पे जो लोग आके बिला इश्तियाल गालियाँ देते हैं, उसके पीछे क्या चीज़ चल रही होती है। ठीक है ना, ये आज मैं आप लोगों को यहाँ पे वाजे करके जाऊँगा। अच्छा जी, ईमान वाले भाई, आप बताएं कि आपको किसने बताया कि इन तीनों का ये अकीदा है? काशिफ भाई, मैं एक बात इजाजत लेके, अगर हैदर वड़ैज भाई अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आप इजाजत दें, नहीं तो आप बात लंबी हो जाएगी मेरे भाई, मेरा काम नहीं, मैं सिर्फ 30 सेकंड करें भाई। मैं जो आप बात करना जा रहे हैं ना, आपका मैं आपके ईमान पे डाउट नहीं करूंगा, ठीक है माशाल्लाह, लेकिन जो मैसेज यहाँ से कन्वे हो रहा है ना, या मैं कर रहा हूँ, या काशिफ भाई कर रहे हैं, या खान साहब कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं, या अब्दुल्ला भाई कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारे मुसलमान यंगस्टर आ रहे हैं ना, उनका ईमान खतरे में ना डालें कैसर जैसे लोगों को सपोर्ट करके। सिर्फ इतना मैं कहूँगा, इसमें आप जो मर्जी दलील दे लें, लेकिन आपसे ये मिसहैंडलिंग हो रही है, प्लीज इसको एडमिट करें। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, उस पे भी हम गौर करते हैं, उस पे भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो मैं अपने ईमान वाले भाई से पूछ रहा हूँ कि इन्होंने आके यहाँ पे बिला इश्तियाल जो गालियाँ दी, जो कहा कि ये काफर हैं और ये कादियानियों के सहूलतकार हैं, ये बताएं कि इनका सोर्स क्या था। बस सिर्फ मुझे ये बता दें। जी काशिफ भाई, आप बताएं। काशिफ भाई, आप सुन रहे हैं?
ये अब अपना सोर्स नहीं बताएंगे, ठीक है ना। हैदर भाई बात सुने ना, एक मिनट मेरी बात सुने। आप इतनी बात देखिए हैदर वराज भाई, देखिए हैदर वराज भाई, आप सिंपल बता काशिफ दे। भाई हैं थोड़े हाई टेम्पर, एक मकान वो फिर से गुस्सा में हो जाएंगे। आपसे सिर्फ क्वेश्चन किया गया प्यारे भाई कि जो हमारे अंदर गलत फहमी है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है कि अगर आपका अकीदा ठीक है और आप सही और अकीदा मुसलमान है, खुदा की कसम मैं काशिफ भाई के बिहाफ पे आपसे माफी मांगूंगा, भाई मैंने क्योंकि किसी वो भाई भी से भाई है माफी नहीं मुसलमान है, आप भी मुसलमान है, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, तो आप सिर्फ मेहरबानी करके पहले एक सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद आगे आप सवाल करें फिर मैं यही कि अर्ज आपका कर रहा हूँ, अकीदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या। मैं दैट्स ऑल। यही अर्ज कर रहा हूँ, मैंने किसी भाई से माफी नहीं मंगवानी। अगर मैं अपनी बात बता भी दूं तब भी मैंने किसी भाई से माफी नहीं मंगवानी, ठीक है ना। अच्छा चलें, आप हैदर भाई बताएं ना, ईसा अच्छा अलैहिस्सलाम की आप अच्छा, वफात के कायल हैं या हयात के कायल भाई हैं? बात स्ट्रेट ये है कि फॉरवर्ड जो बात करें ना। जो मेरा अकीदा है, जो अब्दुल्ला का अकीदा है, जो मलक कैसर का अकीदा है, वो हम्म वही है जो अली द मलंग है उसका है, हुब्बे अली मेरा का तो है, ये इस्लाम अकीदा है साहब कि का है। सैयदना जो ईसा जो अरे सुन अलैहिस्सलाम ले जो बात उनसे सुन हैं ले, उनका अल्लाह तो ने बात रफा, सुन एक ले मिनट ना, ना। आप तीनों ना आप अपनी बात करें, हम तो भाई अलग अलग। अब्दुल्ला मैं भाई से इसलिए कह मैंने रहा हूँ कि मैं तीनों की बात कर रहा हूँ ना, नहीं ना, आप एक कैसर की बात साहब कर का रहे हमने सुना है, वो बार बार कह रहे होते हैं कि वो नहीं कायल है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हो। हाथ के, मैं वो कायल इसीलिए तो नहीं कह है। रहा था कि अगर ये बता देते ना काशिफ साहब के, इनको किसने बताया यार है? हमने सुना है, मैंने सुना है, मैंने खुद सुना, हम मैं झूठ बोल आपकी रहे तो हैं। बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये ईमान हम्म। वाले भाई की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे आके आप मजाक कह शराक रहे वाली हैं ना बात कर रहे कि मतलब कैसर का भी यही अकीदा है, अब्दुल्ला का भी वही अकीदा है, और हैदर, तीनों का एक ही अकीदा है। मैं आपको कह रहा हूँ वो उसका अकीदा है कि जी ईसा अच्छा अलैहिस्सलाम जो चलो उनसे है यार, वो देखो वफात पा गया। देखो देखो जो हमारे मुसलमान भाई हैं ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने किसी को बुलाया नहीं है यहाँ पे, अल्लाह जानता है, यार लेकिन आप ये स्ट्रेट देखना फॉरवर्ड सिंपल सी सीधी सी नीचे बात बंदा कर रहे हैं, लिख आप रहा क्यों है, इतना नीचे एक लमका रहे बंदा हैं लिख बात रहा है को? कि जो हैदर का अकीदा है वही हमारा अकीदा है, ठीक है। तो मैंने भी आपको ये बता दिया, जो आपका अकीदा है ये वही जो हमारा आप डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं ना, एक तो इस्लाम में इसकी बड़ी सख्त मुमानत है, दूसरा जी। मिर्जा आप गुलाम मुझे अहमद कादियानी आप सेम इसी स्टाइल में बातें करता रहा है। भाई मेरा अली मिर्जा अली का कादियानी मलांग के साथ भाई, क्या अली का ताल्लुक है। मलांग भाई, एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा। अच्छा एक हैदर मिनट जी, ठहरे शाह जी, एक मिनट एक मिनट। तो जी सारी हैदर जबरदस्ती बुराइच, बातें आगे आप ना नहीं देखें ध्यान मेरी की बात बात। सुने ना, एक मिनट मेरी बात सुने। देखें इजमाए उम्मत है, ठीक है, तमाम जितने मर्जी फिरके हैं, मसलक है, जितने मर्जी है, लेकिन तमाम का ये अकीदा है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का रफा हो चुका है, कुरान से ये साबित है, वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ठीक है। हाँ जी। तो अब आप ये ना कहें कि मेरा भी वही अकीदा है, कि आप सिर्फ अपनी बात करें, क्योंकि कब्र में आपने सिर्फ अपना जवाब देना है, ना कि आपने मलक तो वो साहब मैं का और अली अब्दुल्ला अल्लाह साहब। को जवाब मैंने देना ही है, मैंने अल्लाह को जवाब देना, किसको देना नहीं, है एक या काशिफ देखिए चौधरी को देना गलत, है इधर। मेरी बात सुन, जब मुसलमानों में गलत फहमी हो जाए ना, तो अपने मुसलमानों की गलत फहमी को दूर करने के अच्छा लिए फिर चले, मैं जवाब आप सब देना भाइयों को पड़ता है। बता देता हूँ, मैं आपको सब भाइयों को बता हाँ, देता हूँ कि मैं सीधा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कि सुन आप ले बात सुन वफात ले के कायल हैं बात या सुन ले हयात के कायल हैं। बात सुन ले, मेरे हयात कहने से या वफात कहने से आप लोगों ने मान जाना है। मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ कि नहीं, जो हम आपका मान, अकीदा चलें है, आप बताएं आपका मैं आपको क्या बता अकीदा रहा है, हूँ चलें जो आपका बताएं। अकीदा है वही हम हमारा माने अकीदा या ना माने उसको एक साइड पे रखें, है। आपका मैं क्या कह रहा अकीदा है? हूँ जो आपका अकीदा है हमारा भी वही अकीदा है, बस बात खत्म हमारा हो गई। हयात का अकीदा है, आपका ये है कि सैयदना जी ईसा मुझे अलैहिस्सलाम देखे ना, जिंदा मुझे है। आपके अकीदे का पता है, तो मैंने आपको बता दिया ना कि मैं जो आपका अकीदा है वही हमारा अकीदा है। अब मेरी भाई बात मेरी सुने। बात सुनो, मेरी बात सुनो हैदर वैज भाई, हम भी कोई बच्चे नहीं है, कान में नवाला नहीं डालते। ये बात जब मरजइयों से पूछी जाती है ना, मरजइयों के मरबियों से, जैसे आप दूसरी साइड से होके हमारी तरफ ही आ रहे हैं ना, मरजई भी ऐसे ही करते हैं। मरजई से बात करो ना तो वो जो चने की जगह पे ना दाल का हवाला दे देते हैं। तो मेहरबानी करें, आप सिंपल वो मरजइयों वाला रुतबा ना इस्तेमाल करें, आप अपना बताएं, आप हमें छोड़ दें, हमें साइड पे कर दें। मैं मुसलमानों बात वाला ना कर लूं, जैसे ये भी काशिफ भाई कर रहे थे, वो वाला तरीका इस्तेमाल कर लूं फिर। वो वाला तरीका फिर इस्तेमाल करना, फिर टांगों पे भार डाल के करना मेरे है, टांगों ऐसे में नहीं करना। भार डालने की क्या बात है, मैं तो बैठा हूँ इधर आप सबके सामने बैठा फिर हूँ, वही टांगों में बात है ना, कैसे भार बात डालते हैं। मेरा भाई ये है हैदर वैज साहब, शाहजी शाहजी एक मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, शाहजी एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखें हैदर भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पे सीन नहीं करना चाह रहे हैं ना है, ठीक है ना भाई। आप जिस ब्रॉड पे बैठते हैं ना, उनके क्लियर कट वर्डिक हैं, आप वहां पे उनको टोकते नहीं हैं, ठीक है ना, आप उनके सहूलतकार बन रहे हैं, ठीक है ना। माशाल्लाह। ये नहीं, देख सुन लें, बात सुन लें भाई, ठीक है ना। तो भाई क्लियर कट आपको कहने में, अगर आप मुझसे पूछ लें कि गुजर तेरा की अकीदा भाई 10 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे बारे च,
मैं आपको बता दूंगा। आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं तो या मैं ना क्या क्यों नहीं बना कर रहे हैं आप मुझे भाई? आपको पूरी फिर बात का नहीं पता, इसलिए मैं असल में वो मालूम है बात भाई, कहना नहीं भाई चाह डे रहा। वन से मालूम है, जहां से ये स्टार्ट हुआ है सब कुछ हाँ मालूम है, हर बस। खबर पे नजर है। चुप करके बैठे थे, कान लपेट के बैठे थे कि यार अच्छा वक्त अब दे, मेरा टाइम जवाब दे। मेरा जवाब है अब ये काशिफ भाई के लिए। अब मैं सुनाने लगा हूँ काशिफ भाई को। जी काशिफ भाई एक बात याद रखिएगा, कभी किसी के पीछे ना लगिएगा, ठीक है? भाई काशिफ अंधी भाई, अंधी मेरी सुन ले, बात सुन ले, आप मेरी मेरी बात बात सुन सुन ले। लें आप ना, भाई गलत मैं बात आपको कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं। तो काशिफ मैं भाई नहीं किसी के पीछे लगे हुए, आप मलक कैसर की धूम पकड़ी हुई है आपने। अच्छा जी ठीक है, आपकी आपकी बात आ गई शाह ठीक साहब, हो आपने गया। आपने बयान कर मेरी दिया ना, बस बात ठीक है, सुने, आपकी बात आ गई। मेरी बात सुने। देखें, आपने मलक कैसर की कब्र में नहीं जाना, आपने जी अपनी कब्र में जाना है। हाँ जी आपने मलक कैसर की कब्र में जाके हिसाब नहीं देना, आपने अपनी कब्र में हिसाब देना है। एग्जैक्टली। आप अपनी कब्र के ऊपर क्यों वजन डाल रहे हैं, आप बता दें। ये जो बहस हो रही है ना, ये बहस मरजई करते हैं, ये बहस मरजई मरबी करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं। आप शॉर्टकट बता दें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो उनसे हैं वो वफात पा गए हैं या नहीं, इस मेरी बात बात की पे आपको यकीन आ जाएगा। मैं तो पहले ये पूछना हम चाह यकीन कर लेंगे। वो दिलों के भेद रब जानता है, रहा। ठीक है। अच्छा अगर आप झूठ बोलेंगे तो रब की पकड़ में आपने आ जाना है। आप ये बात ठीक है क्लियर कर दें। ठीक है। अच्छा जी ये मैं बात अभी क्लियर कर देता हूँ। मैं ना सिर्फ ये काशिफ भाई को इतना कहना चाह रहा हूँ कि काशिफ भाई बात सुन काशी लें भाई इस आप। ब्रांड में नहीं है, काशी भाई इस ब्रांड में नहीं है। आप जो बाकी ये 8 इनको यहाँ लोग पे बैठे नीचे उनको उतार दें, हैं कर दें फिर आप अगर यार, वो नहीं है। बच्चों को स्कूल लेने गए हुए हैं, आप बात वो फाइनल सुन करें। रहे हैं ना, इसलिए वो बात नहीं शायद कर सकते होंगे, सुन रहे होंगे ना, इसलिए मैं आपको उनको बताना चाह रहा हूँ। यार कसम है अल्लाह दी, हैदर भाई इतना मुश्किल क्यों बनाया हुआ आपने? मेरी जान फिर जिसले गाला खाई है तो फिर मुश्किल तो बन जाती है ना। ओ यार कोई नहीं, सानू साडे जिसने ते फतवे सारे इन्ने सामने लगे बैठ हैं, के ਅਸੀਂ गाला खाई है, यार काफर हुई है, अपने ही तो लोग फिर हैं, गाना सौखा उन्हें आख्या सारे कि अपने ही काफर हैं, काफर क्या हो आ। गया है? हाँ कोई बात नहीं शायद। अदील मैं अदील सवाल भाई कर सबसे लूँ पहले कि नंबर रहने पे दो। तो सलाम पेश करता हूँ जनाब, आपकी गुजारिश करनी थी, एक सलाम पेश करता हूँ अदील भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। किधर गायब रही हैं सरकार? अदील नहीं इधर ही जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मसला ये है कि आज जो टोनी जो है, ताहिर अहमद जो मिर्ज़ई है, आज जब वो बात कर रहा था तो कौन साथी वहाँ पे मौजूद था? कौन कौन साथी मौजूद था वहाँ पे? नीचे को उस दोस्त या ऊपर पैनल में कोई बंदा दोस्त बैठा वहाँ पे मौजूद था? ये कहाँ की बात हो रही है मुझे नहीं पता जवाब दे, फिर अबू हसन साहब ने भी सवाल करना है। जी। जी आप जवाब दें, क्या जवाब देना चाह रहे हैं आप? हाँ मैं जवाब ये दे रहा था जी कि भाई जिस बंदे ने काशिफ भाई को कहा है ना जी जी कि भाई ये काम हो रहा है या ये करना है, जी उस बंदे को इस बात का 100% पता है कैसर मलक के क्या अकीदा है, हैदर वड़ैच का क्या अकीदा है, और अब्दुल्ला का क्या अकीदा है। वो बंदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो आप लोग इस्तेमाल हों, आप तशरीफ लाएं, हमें गालियां निकालें, हमें काफर कहें, हमें कादियानी कहें। आपको अच्छा तब पता चलेगा हैदर जब साहब, आपसे वही हैदर बंदा साहब, माफी एक मिनट मंगवाएगा। भाईजान, एक मिनट चुप नहीं करो, नहीं भी नहीं, गल पूरी हो लेने, मैं शादी गल करना, एक मिनट, सिर्फ एक ओके मिनट। ओके। हाँ जी, अच्छा दरबार साहब दसो। आप इनको तब अकल आएगी जब वही बंदा इनसे माफिया मंगवाएगा। अच्छा हैदर ठीक है? बड़ाई साहब, तुसी माशाल्लाह गल दस दी कि जो बंदा इनको गलत गाइड कर रहा है। हाँ अब जी आप मुझे एक बात बताएं, जी आपके दरवाजे पे एक बच्चा खड़ा है, हाँ जी। वो बच्चे को आपकी आंखों के सामने कोई बंदा थप्पड़ मार देता है, हम्म। और साथ वाला यार गवांडी ये जो होता काशिफ है भाई नीचे कह रहे हैं कॉल पे लो उस पे उनको। वो आ गए। हाँ अगर साथ वाला बंदा कहे कि भाई यार ये बंदे ने थप्पड़ मारा है, हम्म। ठीक है, आप किसकी बात पे यकीन करोगे, साथ वाले की या जिसने मारा उसके कहने की भाई मैंने नहीं मारा? आप किसकी, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, बस साथ आपको वाले समझ भी नहीं आनी। मलक नहीं। कैसर जोन्स है, आप उसको क्या समझते हैं? मैं तो भैया से मुसलमान समझता हूँ, और क्या समझना उसे, जैसे मैं आपको मुसलमान समझता हूँ। हमारा तो अकीदा ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे उठाए गए हैं। अच्छा हाँ जी, तो अब आगे बात करें। वो तो कहता है फौत हो गए हैं। अच्छा अगर वो कहता, अगर उसका अकीदा ये हो कि वो फोत हो गए, तो उससे आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, वो फिर कादियानी है माशाल्लाह, ठीक जी, होगा, क्योंकि ठीक होगा, कादियानी क्योंकि भी वो यही मिर्जा कहते गुलाम हैं। अहमद को मानना शुरू कर दिया ना उसने, हैं? है? किसने? करे क्योंकि हदीस, मिर्जा गुलाम अहमद को मानना शुरू कर हदीस दिया। है, वड़ाइक साहब वो आपका भी मुनकर हदीस है भाई। कैसर वाला कीदा है। भाई मेरा तो आप वाला भाईजान वो मुनकर, बात करें। एक मिनट भाईजान, वो बंदा मुनकर हदीस है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फौजशुदा माने, वो मुनकर हदीस है।
हैदर भाई अपना अबू हसन भाई अच्छा ठीक है अगे दसो जी हैदर साहब फिर तुसी मैं भी तो फिर वही नहीं मैं मैंने तुसी हाँ जी वही ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ जी ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ नहीं नहीं ਸਾਰੀ साडा नहीं है सानू ना विच लाओ भाई सानू ओ ना विच भाई लाओ ओ भाई हैदर ब्रैच हम लोगों को बीच में शामिल मत करो वो अगर सानू तुम्हारा ना शामिल करो अब्दुल्ला का और एक मिनट कैसर हेलो का शाह जी एक मिनट नहीं शाह जी नहीं एक कैसर मिनट का एक अकीदा है तो तुम लोग खान जानो साहब एक मिनट जी खान साहब एक मिनट शाह जी एक मिनट जरा हाँ जी हैदर साहब यार आपने मुझे मुझ पर एक अबू हसन भाई एक एक दो मिनट बातें सिर्फ आपने कर मुझ पर लेने थे इल्जाम मैं आपको लगाया बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ आपने मुझ पर इल्जाम मैं लगाया बड़ी अहम बात आप दोस्तों से शेयर करने लगा अबू हूँ हसन भाई एक सेकंड यार जी हैदर बड़ाई साहब आपने मुझ पर इल्जाम लगाया कि वो बंदा पता नहीं कौन सा बंदा वो आपको भी जानता है अब्दुल्ला को भी जानता है उसके अकायद को भी जानता है भाई वो कौन सा बंदा मैं यही पूछ रहा था आप ये जो बात कर रहे थे कि आपको हमारे अकीदे का पता चल गया तो वो आपको किसने बताया और भाई मैं याद रखना हम्म, 24 घंटों में से सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ माशाल्लाह 24 बाकी तो घंटों में से इबादत करता 5 हूँ घंटे सोता हूँ और जब मैं जॉब पर होता हूँ तब भी मेरा मोबाइल टिकटॉक की लाइव्स के ऊपर ऑन होता है हम्म, ठीक है मेरी ड्यूटी कुछ ऐसी है कि जहां मैं मोबाइल को सुन सकता हूँ मोबाइल पे होने वाली चीज को सुन सकता हूँ ठीक है ठीक है ना तो देग जब पकती है ना तो उसके 1-2 दानों से ही पता चल जाता है कि चावल पके हुए हैं कि कच्चे हैं या मसाले की क्या पोजीशन है ठीक है ठीक है ना बिल्कुल सही बात की बाकी आप बात ये कि आपका जिन बोतल से बाहर आ गया है जी आपने जी अभी भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक कुफरिया कलमा कहा है क्या कहा जिसके कहने के ऊपर आपने अभी कहा है शाह जी को कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो नाउज़ु बिल्लाह वफात पा चुके हैं ये मैंने नहीं कहा आपका ये अब शाह जी शाह जी बताएं मैंने कहा कि शाह जी बताएं जरा इसने क्या कहा अभी इसने यही कहा है कि मैंने इसको बोला कि मलक कैसर कहता है जी फौत हो गए हैं इसने कहा मेरा भी और वो जो क्या नाम है क्या थी दूसरे बंदे का और कैसर का मतलब कैसर अब्दुल्ला का कैसर का हमारा और वही आपका अकीदा है और आप सबका भी तो हमारा ये अकीदा नहीं है भाई हेलो नहीं हमने उसी वक्त बोला कि हमारा नहीं है हमने उसी वक्त बोला कि हमारा नहीं है तुम हमें ना शामिल करो अच्छा मुझे हैदर बड़ाई साहब ये बताओ कि हमारी और मरज़इयों की बहस किस बात पे है भाई वो बहस जिस बात पे है वो है उधर ही बात अभी जो हो रही है वो करें आप तो वही बात हम कर रहे हैं ना आपने कहा आप सुन ले मेरी बात हमारी मर्जियों से बहस इस चीज की है कि हमारे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं वो जिंदा आसमान पे उठाए गए हैं वो कहते हैं फौत हो गए हैं ठीक है यही बहस है हाँ जी और हैदर बड़ाई साहब इरशाद फरमाते हैं मलक कैसर के पीछे लग के मलक कैसर कहता है कि जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं अच्छा और आपका आप भी यही समझते हैं शाह जी बड़ी माजरत के साथ गुजर भाई एक मिनट मैं बड़ी माजरत से आप भी हैदर बड़ाई साहब यही समझते हैं कि वो फौत हो गए हैं मैंने आपने मुझे ये स्टेटमेंट दी कि जी मलक कैसर का अकीदा है कि वो हजरत ईसा फौत हो चुके हैं ठीक है ना जी बिल्कुल मैंने आपको कहा कि मलक कैसर का मेरा अब्दुल्ला का या जितने हम दोस्त हैं और आप सब का एक ही अकीदा है अब आप बता दें आपका क्या अकीदा है हमारा भी वही आप बता फिर दें आप एक काम करो फिर अपनी शनाख्ती कार्ड पे फिर हम सारों का ही नाम लिखवा लें शाह जी एक बात कर लूं मैं शाह जी एक बात अखीर बात कर रहे हो यार तुम शाह जी एक बात कर लेने दे एक बात कर लेने दे ये जो कह रहे हैं ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं या जिंदा हैं इससे भी खतरनाक एक मिनट जरा बात सुन लेना हैदर भाई इससे भी खतरनाक जो है वो इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू की है इन सब ने मिलके कि हजरत वो जो है ना जनाब ये मिर्जा कादियानी जो है उसने नबूवत का दावा ही नहीं किया उससे नबूवत का दावा साबित ही नहीं है ये प्रोपेगेंडा अब इन सब ने मिलके ये जो कैसर मतलब कैसर पार्टी है ना आज टोनी जो है जो टोनी है वो अहमद अच्छा बात ठीक कर रहे हैं वो गुजर भाई मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं मैं बात मुकम्मल कर लूं बात ठीक कर रहे हैं आप जी आज ताहिर अहमद जो टोनी है वो बकायदा तौर के ऊपर जो है वो इस चीज की प्ली ले रहा था कि जब मिर्जे से नबूवत का दावा साबित ही नहीं है तो फिर आपने कादियानियों को काफिर क्यों करार दिया फिर आपने क्यों काफिर करार दिया कादियानियों ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया इसका मैं आप जवाब दे के जाऊंगा आपको आप जी दें जवाब जी दें जवाब बाद में जवाब दें
पहले हमारे सवाल का जवाब दे। ओ भाई आपका सवाल का जवाब दे दिया, कितनी दफा दूं? क्या यानी कि आप ये समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं? अच्छा आपका ये अकीदा है? हमारा अकीदा ये नहीं है। तो हमारा फिर जो अकीदा मैंने तो क्या कहा, मैंने कहा जो आपका अकीदा वही हमारा अकीदा, तो आप ये तो क्यों उसको बार मुंह से दोहरा दो ना, क्यों मुंह में मेहंदी लगी है? आप ओ कह दो भाई ना। मेहंदी नहीं, तो आपको तुमने लगी ये है, कहा क्योंकि है। आपके मुंह में मेहंदी एक लगी मिनट तो आप शाह जी, गाली खान निकाल साहब रहे हो एक ना। सेकंड यार, एक एक सेकंड सारे सेकंड। म्यूट लाओ। एक सेकंड खान साहब, एक सेकंड मैं जाना है। एक सेकंड मैं सारे ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਦਰ ਵੜਾਇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਈਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾ ਖੈਰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਵਾਬ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਜਰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। दोहरा दो ना जरा। नहीं 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 नहीं, हैदर वड़ाइच तुम जो ना कादियानियों वाली जो ना रंगील मार रहे हो, समझ गए हो, क्योंकि मलक कैसर का अकीदा हमारा अकीदा नहीं है। जब तुम अपना अकीदा मलक कैसर के साथ मैच कर रहे हो तो फिर तुम्हारा अकीदा हमारे साथ नहीं मैच होता। भाई बात ये है, मैं तुम लोगों को मैं सुन ले मेरी बात सुन ले। जो मलक कैसर है, मैं उसके लिए कंफर्म चाहो स्टाम्प पेपर पे लिख के स्टैम्प करके देने के लिए तैयार हूँ कि वो इंसान कादियानी है, मुल्हिद है, हदीसों का इनकार करने वाला है। ठीक है यार, ये इधर ना नीचे ना राजपूत भाई ने एक बात लिखी है। राजपूत भाई मेरा कोई अकीदा जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ अकीदा और दसो। मैं राजी हूं। ਮੈਨੂੰ ਹੈਦਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਜ਼ਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ, ਅਬ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਵਫਾਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹਯਾਤ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਤਰਮ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਾਂ 2000 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਕੀਦੇ ਇਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕੋਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਮਾਤ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਅਬੂ ਹਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਬੂ ਹਸਨ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਵੋ। ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਮਲੇ ਅਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜੁਮਲਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰਿਹਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਤੇ 74 ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਸ਼ਕੂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ। भाई एक मिनट, दोनों भाई बात सुनो। हैदर वड़ाइच साहब,
मसला ये है कि मिर्जा की अपनी किताब में जब वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि कलमा में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मैं हूँ, इससे बड़ा और दावा क्या ढूंढेंगे आप? इससे बड़ा दावा क्या ढूंढना है आप लोगों ने? इससे नहीं साबित होता कि वो कादियानी ने बदल दिया वो बगैर थे। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा असल में सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि एक होता है डिबेट के दौरान आप सवाल को करते हैं ना किसी से, वो एक अलग चीज है, लेकिन अपना अकीदा ब्रॉड के ऊपर बयान करना दोस्तों के दरमियान बैठ के, वो एक अलग चीज होती है। और फिर उसके ऊपर मुसर हो जाना कि नहीं जी मैं जनाब यही मेरा अकीदा है, जाओ तुमने जो करना कर लो। ये मामला हुआ कि नहीं हुआ? उसने मलक कैसर ने शाह साहब को बुला किया या नहीं किया? तो बीच में ये शाह साहब का मसला किधर से आ गया, ये पहले बताओ। जनाब शाह साहब की वजह से तो हम चुप कर गए थे, वरना तो हमने जब पहले ही जब मसला हमने उठाया था, जब हमने पहले मसला उठाया था तो उस्ताद मोहतरम के कहने पे हम चुप कर गए थे। अच्छा, ये काशिफ भाई भी सुन रहे हैं, बात कर सकते हैं? इस शाह साहब की बात ना करें इसके साथ। शाह साहब आपने काशिफ भाई बात कर सकते हैं आप? काशिफ भाई आप माइक ओपन करके बताएं, बात कर सकते हैं? साहब आप एक बात कर लें सवाल पे, बहुत क्लियर सवाल है, आप उस पर जरा डिस्कस कर लें, फिर बाकी बातें भी कर लेते, क्योंकि हमें पता हो कि आपका अकीदा क्या है, हमने आपके साथ क्या हिसाब किताब रखना है, कैसे चलना है, आपकी ब्रॉड को फॉलो करना नहीं करना। तो आप अबू हसन भाई के सवाल पे रहें प्लीज। अच्छा, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इन्होंने शाह साहब की बात की है, तो मैं सिर्फ ये काशिफ भाई से इतना पूछना चाह रहा था। काशिफ भाई ने पहले भी शाह साहब यहाँ मौजूद नहीं है तो उनका जिक्र ना करें, कोई भी भाई ना करे, शाह साहब के शागिर्द भी ना करें, जिक्र ना करें। अब मेरी बात सुने, जब आपके अंदर हिम्मत होगी ना, जब आपके टांगों में सांस होगा तो शाह साहब की ब्रॉड पे आ जाना। आप इधर जवाब दें जो आपने देना। मेरे मत्थे ना लगे हैदर साहब, मेरे मत्थे ना लगे, अपना अकीदा बयान करें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, बस बाकी बातें छोड़ें। हमारा क्या अकीदा है क्या नहीं अकीदा, आप अपना अकीदा बयान करें। उस्ताद मोहतरम का नाम यहाँ नहीं लेना, नाम मैं ले उस्ताद मोहतरम का नाम उस्ताद मोहतरम के सामने ले जाके। डरते क्यों हैं? मोहतरम के सामने डरते क्यों हैं? किसने बात की थी उस्ताद मोहतरम के सामने कादियानियों और मर्जियों की टट्टी निकलती है, आपकी क्यों निकल रही है? आप तो कह रहे हैं आप मुसलमान हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो फिर उस्ताद मोहतरम के सामने फेस टू फेस जाके बात करना। यहाँ ये बताओ, यहाँ ये बताओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? मेरी सुन लें बात, आपने एक और ब्राड पे गालियां निकाली उस्ताद मोहतरम के बारे में बात नहीं हैदर वड़ाई, तुमसे एक आसान सवाल किया गया है जिसका जवाब तुम्हें हाँ या ना में देना है। तुम सिर्फ घुमाते हो यहाँ से जी, वो जो आपका अकीदा वो हमारा, यार हमारा अकीदा मलक कैसर के साथ नहीं। खान साहब फिर इधर से यार ले जा कासिम, खान साहब आप खुद बताएं ना। भाई अब्दुल्ला माइक बंद कर, बहुत शोर आ रहा है तेरे पीछे से। आप खुद बताएं, माइक बंद कर, शोर आ रहा है, शोर बहुत शोर आ रहा है। अब्दुल्ला शोर आ रहा है तेरे पीछे से, लगातार गालियां देता है, वो कैसे किसी का अकीदा बोल सकता है? हेलो, उसने मेरी माँ को गालियां दी हैं। शोर आ रहा है अब्दुल्ला, शोर आ रहा है, मेरी माँ को गालियां दी हैं। हेलो 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 अब्दुल्ला इसने मेरी माँ को गालियां दी हैं। और तू खलो, मैं तेरी भैन नू भी दवांगा। माशाल्लाह, ये कैसे मेरा अकीदा पूछ सकता है? अच्छा यार, उस्मान भाई नहीं पूछ सकते तो मैं पूछ नहीं, आप पहले मुझसे माजरत करें, जो गालियां दी हैं उसके बाद हमारा अकीदा पूछा। नहीं वो तो यार अब्दुल्ला साहब, उस्मान भाई एक सेकंड, उस्मान भाई एक सेकंड, मैंने देखे अब्दुल्ला साहब आपसे भी और हैदर वाइस साहब से भी ये बात कही थी कि आप अपना अकीदा बता दें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आप क्या मानते हैं। जनाब काशिफ भाई की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, मोहतरम, मैं माफी मांगूंगा आपसे। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, आप कह रहे हैं जी माफी नहीं चाहिए, माफी नहीं चाहिए, अकीदा बता नहीं रहे हैं। मसला ये है कि आप हमारे उम्मत के मुसलमान बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। अकीदा तो बता जो दिया चीजें, आपको। जो बातें हो रही हैं आपकी ब्राडों पे, वो हमारे इस्लाम के, हमारे नजरियात के, हमारे आका की हदीस के खिलाफ जाती हैं वो। अच्छा खान साहब, मैंने आपको अपना अकीदा बता दिया, आप अपना अकीदा बताएं। भाई यार मैं कहता हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, आसमान पे अल्लाह पाक ने उनको उठाया है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उनके मदद मांगो, जो हमें गालियां दी हैं, मुसलमानों को, मेरी वालदा को गालियां दी हैं। यार मैं माफी मांगूंगा आपसे, आप अपना मेरी वालदा को गालियां दी हैं।
अच्छा चलो वो तो चले गए हैं ना, काशिफ करो भैया भी इधर पहले मौजूद नहीं पीछे है। काशिफ भाई आ गए हैं, ये खतरे अकीदा के पूछो। शोरूम वाले आ गए हैं। अच्छा बात करते अच्छा हैं, खुद मुझे ही बात ये कर लेते हैं। बताएं, आपको गालियां सुनाई दे गई हैं, जो बंदा कहता है कि जनाब उलमा जो शरीर हैं वो तो ऐਵੇਂ ही नहीं बातें उस्मान भाई, करते हैं, पहले यहाँ तो दावा उनसे नबूवत मदद करवाएं, फिर आप पूछे, क्योंकि आप सारा एक ही ग्रुप है ना। नहीं तो बात सुने, जब मुफ्ती साहब उधर मौजूद थे तो तब नहीं आपको ऊपर आके ये आई बात कि मैं ऊपर जाऊं और मुफ्ती साहब को कहूं इन्होंने मुझे गालियां दी, आप हमारे ऊपर ब्राड क्यों लगा के बैठे हुए हैं? तब तो आप ऊपर नहीं आ रहे थे। नहीं मुफ्ती साहब अब के साथ आप मेरी जब बात हुई है, मेरी बात हुई है अब मुफ्ती साहब जब के साथ। भाई लाइव की बात कर रहे हैं, हम लाइव की, मैं मुफ्ती लाइव साहब की ने बात लाइव कर रहा हूँ, चलाई मेरी थी, मुफ्ती साहब आपको के खान साथ साहब लाइव आप चलाई कौन थी। है? कब हुई है? आपको मेरी कब हुई मुफ्ती साहब है, के साथ कब हुई है लाइव भाई? परसों की बात मेरी है। ब्राड चल रही खान थी, साहब मेरी मेरी बात ब्राड सुने, में आपको आप बुलाया गया। बुजुर्ग नो, अब्दुल्ला ने उन्हें आप अपनी खुद अपनी फिल्म चलाई है, सोचें, आप खुद ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ मैं अपनी तोन के उर्दू रखा। में मुसलमानों का मैं वही अकीदा बता इतना रहा हूँ, कमजोर उसको कैसे अपनी कब से पड़ी हो है कि गया? मैं अपनी तोन के रखनी है। मैनू कोई नहीं, मैनू मेरी मेरी गल का जवाब दो भाई, जो तुम लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ मुआज उठाया हुआ है उसका कौन जवाब दे है? अच्छा मेरी बात सुनिए उस्मान भाई, बात सुनिए। अब काशिफ भाई आ गए हैं, अब वो जवाब अपना खुद देते हैं। हाँ जी काशिफ भाई, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने एक ब्राड पे गालियाँ निकाली, फिर बाद में वो जाके अच्छा वो फिर वो भाई हैदर साहब सबसे आपने माजरत की, वो आपने माजरत किसके कहने पे की थी? ये यार बताएं। आपको अपनी इज्जत मुसलमान के कायद से ज्यादा प्यारी है। नहीं हमें अपनी इज्जत नहीं मैं चाहिए, कहता हूँ आप आप देखो मेरी बात सुनो, हम लोग आप अब्दुल्ला और हैदर बड़ाई रुक जाओ यार, हम लोग आप यार सुनो मेरी बात, दोनों बंदे रुक जाओ यार, एक मिनट अब्दुल्ला रुक जाओ यार, एक मिनट रुको अब्दुल्ला भाई, रुको यार, एक मिनट ठहर जाओ यार, मेरी बात सुन लो यार, मेरी बात सुन लो, ठहर जाओ। पहले साबित तो कर लो कि तुम लोग सब्र करो मुसलमानों यार। के अकायद पे हो, साबित तो कर लो पहले मुसलमानों के अकायद पर हो तुम लोग। एक बंदा कैसर है, अल्हम्दुलिल्लाह, पूछो मुझसे कीदा, पूछो पूछो कीदा मुझसे, फिर साबित करते हैं हमने। मैं पूछता हूँ, चलो ठीक है, चलो ठीक है, आपने दावा कर दिया, इसकी दलील दो जरा जल्दी, फिर मैं दावा अपनी दलील देता हूँ। चलो फिर और मैं तुम्हें एलानिया कहता हूँ, आप लोग गालियां देते हैं, मुसलमान गाली नहीं देता। लो जी बात सुन ले जी, मुसलमान गाली नहीं देता, इन्होंने इसके लिहाज से जनाब मरज़ई साबित किया है मुझे, वो भी एक मुसलमान भाई को नहीं, मरज़इयों के सहूलत का उस्मान एक मिनट, अब्दुल्ला एक मिनट, आप कह रहे हो कि जो मैंने आपको बुरा भला कहा है उसकी मैं आपसे माजरत मांग रहा हूं जी। नहीं नहीं आपने कही क्यों है, ये क्या तरीका है? अभी थोड़ी देर बाद फिर निकालना शुरू कर देंगे। वो मैं यकीन करें कि मेरे सामने होती ना, तो वो बात जो मैंने कही है ना, उस्मान भाई को बात करने दीजिए। उस्मान भाई बात करो, तुम मेरे से माफी की बात कर रहे हो, कसम से मैं उस्मान भाई मेरी बात सुने, उस्मान भाई, अब्दुल्ला मरज़ई, उस्मान भाई बात सुने, बात सुने उस्मान भाई, उस्मान भाई बात सुनो, उस्मान भाई बात सुनो, बात सुनो, अब्दुल्ला दब रही है। मरज़ई, उस्मान अब्दुल्ला मरज़ई, उस्मान उस्मान भाई बात माइक सुनो। म्यूट कराओ, तुम्हारी आवाज दब रही है, बिल्कुल नहीं आ रही तुम्हारी आवाज, इसका माइक म्यूट करा के बोलो। उस्मान भाई बात सुने, बात सुने, उस्मान भाई बात सुने, बात सुने, मरज़ई से बात होगी, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले उस्मान भाई, मेरी बात मरज़ई अब मेरी बारी, मरज़ई अब मेरी बात बारी, सुने ना, मेरी पहले बात सुन ले उस्मान भाई, मेरी बात सुने, मरज़इया उस्मान भाई मेरी बात सुन ले, उस्मान भाई ऐसे नहीं, आप लोगों ने अजीब तमाशा लगाया हुआ, बात सुने, मरज़ई चुप कर, नहीं मरज़ई अब चुप कर, नहीं अब इसने बात कर लिया, बात नहीं कर, उस्मान भाई बात सुने, ना ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, पता है ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, मैं ठोकता हूँ इनको, नहीं मरज़इयों को तकलीफ है, मैं कह रहा हूँ, मैं उस्मान भाई मेरा, ओ उस्मान भाई कादियानी भी बात ठोकता हूँ, सुने, इनको मुझसे तकलीफ है भाई, बात मुझसे हो बात रही सुनो है, उस्मान भाई, तुमने मुझे नहीं ऐसे बात नहीं होगी, इस मरज़ई ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने इनको गाली दी, इस मरज़ई ने मैंने आप पर नहीं लगाया कि मैंने गाली दी, भाई बात मुझसे हो रही है, तुमने कहा कि मैं तुम्हें साबित करता हूँ तुम मुसलमान नहीं,
मैंने तुम्हें कौन सी गाली दी? कुफर तुम पे लौटा, मैंने नहीं कहा। तुम मरज़ई मेरी बगैर दलील झूठ के बोल रहे हैं, मरज़ई झूठ। तुम मरज़ई उस्मान भाई, बगैर किसी दलील ओ के साबित उस्मान हो गए। भाई, दूसरी दलील, उस्मान भाई मेरी बात सुने, उस्मान भाई मेरी दूसरी बात दलील, सुने। मरज़ई बात नहीं सुनो। नहीं, मरज़ई अब बात सुनो। चलो ओ मरज़ई उस्मान भाई मेरी अब बात दूसरी सुने, दलील ऐसा मेरी, नहीं होगा। दूसरी दलील चल शोर मरज़ई, डालते रहो। मरज़ई अब मेरी दूसरी दलील। अली का मलंग, उस्मान इनको भाई मेरी म्यूट बात करो, सुने। इन्होंने बात अपनी की, अब मेरी बात नहीं होने दे रहे। नहीं की मरज़ई मेरी बात नहीं मैंने होने दे नहीं रहे। की, जैसे कादियानी करते हैं वैसे ये कर रहे हैं, मैंने बात नहीं नहीं की, करने देंगे। मरज़ई बात नहीं करने देंगे। मैंने मरज़ई नहीं तुम की। लोगों को ख्वाबों में भी मुझसे जो है वो तुम्हें बुग़्ज़ नजर आएगा। तुम लोगों को पता है मैं मंडी ठोकता हूँ, इसलिए तुम बात नहीं करते। उस्मान मरज़ई भाई मेरी मुझे बात बात करने दें। मरज़ई बात सुन ले मेरी। तुमने पहली दलील अपने ही खिलाफ दी और मरज़इयत खुद अपने आप को तूने मरज़ई कबूल कर लिया, जबकि तूने मुझसे बात की, तूने मेरा मुसलमान होना नहीं माना, तूने कहा तुम लोग मुसलमान नहीं, जिसमें मैं भी शामिल, मैं भी बात कर रहा था। अब दूसरी दलील ये है कि मुसलमान का अकीदा है, तमाम उलमा इजमाए उम्मत है कि मिर्जा कादियानी से दावा नबूवत साबित है और वो अपने दावा नबूवत से काफिर है, जबकि तुम लोगों ने एक मरज़ई मलक कैसर उसकी हमायत करके और उसको जनाब कुफर फैलाने की ये इजाज़त दे के उसके अकीदे भी ठीक नहीं करवाए, अपनी बराडों में मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करवाते हुए तुम लोग खुद भी मरज़इयत में शामिल हो, और जो फिर जिसके साथ शामिल है वो उसी के साथ उठेगा। तुम लोग मिर्जा इंजीनियर मरज़ई जो है कादियानी भी है, वो उसके अकायद नजरियात को प्रमोट करने वाले हो। तुम तो बिना दलील के मरज़ई हो, तो तुमने मुझ पे कोहतान लगाया कि मैंने तुम्हें गाली दी और मैं मरज़ई हूँ, वो इसलिए ऐसे कि मुसलमान गाली नहीं देता। कौन सी मैंने तुम्हें गाली दी है? हैदर बड़ाज को आज तक मैंने कौन सी गाली दे दी है? मलक कैसर को कौन सी गाली दी है? कोई गाली नहीं दी भाई, मैं बता रहा हूँ सबको। लेकिन बात ये है उस्मान भाई, उसने अब्दुल्ला ने आपको ये नहीं कहा कि आप गैर मुसलमान हो या आप कादियानी हो, उसने ये कहा कि आप कादियानियों के सहूलतकार हो। देखें उसका मकसद ये था कि भाई आप जब मुसलमानों के खिलाफ ही बात करेंगे, मुसलमानों को इस तरह से ग्रिल करेंगे ऑनलाइन बिठा के, तो ये आप उनको मौका दे रहे हैं। जो आज ब्रॉड अभी तक यहाँ पे जो चली है, ये अब कादियानी क्लिप निकालेंगे और वो यार डालेंगे, यहाँ पे रोज डालेंगे, ठीक है ना, जिसका आप भी जवाब देंगे, जिसका हम भी जवाब देंगे, ठीक है। हैदर बड़ाज हम मेरी लोग बात ये सुनो, कहते एक हैं, मिनट नहीं अली भाई एक सुनिए मिनट मेरी बोलने बात, दे, सुनिए मेरी मुकम्मल बारी करने आनी दे है, मुझे, मुझे बात इनको मुकम्मल बोलने करने दे। दे, मुझे अली बात खान को मुकम्मल करने दे भाई बोलने दो। उस्मान भाई, मुझे बात मुकम्मल करने दे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यार जब बात का जिसको पता नहीं ना होता, तो फिर एम फजूल आके किसी की माँ बहन को गालियां दे दो, किसी को कादियानी कह दो, किसी को कुछ कह दो, ये बहुत ही गलत बात है। और ख़ास तौर पे वो शख्स जो एक ब्रॉड पे जाके गाली देता है, तीसरे दिन वो किसी के कहने पे माफ़ी मांगता है, फिर गाली देता है, फिर किसी के कहने पे माफ़ी मांगता है, आज फिर वो गालियां दे रहा है, उसकी तो गालियों का ही असर खत्म हो गया। कहने बात समझ गए? उस्ताद के कहने पे माफी मांगता है, किसी के कहने पे नहीं दिया। क्या क्या हुआ है? क्या कहने लगे हो? कहो काशिफ, बात करो। चलो कैसर हैदराबाद अपने उस्ताद मोहतरम के कहने पे, जिनसे मैं पढ़ता हूँ कादियानियत के बारे में, माशाल्लाह। अच्छा काशिफ, उन्होंने माफी मांगी है, जी ठीक है। अच्छा उनके कहने पे माफी मांगी, किसी के कहने पे नहीं। जबान जलती है तुम्हारा मुफ्ती साहब का नाम लेते हुए। जी ठीक हो गया। अच्छा काशिफ भाई, अब मैं आपको एक बात बता के मैं नीचे उतरने लगा हूँ, ये बात आप गौर से सुन लेना, मेरी बात सुन ले, सुन ले मेरी बात। उस्मान भाई एक सेकंड सिर्फ प्लीज। काशिफ भाई, मैं आपको ये बता के जाने लगा हूँ कि जिस उस्ताद के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस्ताद जी का जिक्र यहाँ नहीं करना। ना उस्ताद जी की ब्रॉड पे आ जी, उस्मान की बात का जवाब दो, उस्मान की बात का जवाब दो, उस्मान की बात, उस्मान भाई बोले, उस्मान भाई बोले। उनको मलक इनको अपनी बात करने, ठीक है, फिर मैं अपनी बात मुकम्मल करें, उसकी बात करें, मुनाफिकत कर रहा है, बात करें, शाह साहब से बात करें, जो करना है कर लें, जो चलाना है चला लें, गालियां देना तो गालियां दे लें, कादियानी कहना तो कादियानी कह दें, काफिर कहना तो काफिर कह दें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इस बात का सबूत मौजूद है। मौजूद है, क्या सबूत मौजूद है? दोबारा बताना। मेरे पास इस बात का सबूत मौजूद है कि नुक्ताचीनी ना करो, नुक्ताचीनी ना करो, ब्लेम नहीं, क्या सबूत मौजूद है? एक मिनट गुजर यार, एक मिनट। उस्ताद को मलक कैसर के अकीदे का पता है और वो इस चीज को मानता है। करो सबूत, ढूंढते रहो, चलो सबूत पेश करो, चलो भेजो सबूत भेजो, करते रहो। हमारे उस्ताद को पता है ना कि वो कादियानी कायद रखता है, हमारे उस्ताद को पता है कि वो भी कादियानी कायद रखता है, और तुम भी गोबर शाही कायद रखते हो।
गोहर शाही अकायद रखते हो तुम, तुम्हारे अकायद गोहर शाही वाले हैं। हैदर वलायत और अब्दुल्ला गोहर शाही वाले अकायद हैं। ओके, खुदा हाफिज। मैं आप सबको, मैंने जो आप सबको बताना था मैंने बता दिया। नहीं हैदर वलायत से सुन के जाना यार, ज्यादा झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं बताया, झूठ बोल। अल्लाह हाफिज, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। मैं आप सब लोगों को बता के जा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को मुसलमान ही मानता हूँ। नहीं सुन के जाओ, देखो बात सुनो हैदर वलायत सहूलतकार मानते हैं। हाँ ठीक है, जो मर्जी हैदर मानते वलायत हैं। बात सुनो हैदर वलायत बात। मैं नीचे बैठ के सुन रहा हूँ उस्मान, आपकी बात। अब नहीं आप इधर बैठ के सुनो। देखो आप बात जो है हाँ, ना बात वो तहम्मुल, बात जो है ना वो है जो हकाइक पे मबनी हो, हकीकत हो। आपसे उस दिन भी मैंने और आसफ भाई ने बात की, आपको समझाया, आप अपने मौक़िफ़ पर बदले और बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, आप अपने मौक़िफ़ से बदले। आज भी आपने यही बात की है। देखो कि वो मुसलमान जो कादियानी है वो बराड की वीडियो बनाएंगे। देखो जब आप मुसलमानों के सामने अपने अकायद बताते हैं कि भाई मिर्ज़ा कादियानी से दावा नबूवत साबित नहीं, उसकी भी वीडियो कादियानी बना चुके हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ मौक़िफ़ कादियानियों के आ चुके हैं। तो हमें चाहिए कि हम आपको समझाएं, आपको बताएं, आपको हक़ाइक़ से आगाही दें कि भाई ये जो अकीदा आपने अपनाया और जो आप कहते हैं कि मिर्ज़ा इंजीनियर ने बिल्कुल ठीक कहा, गामदी ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैंने ना मिर्ज़ा इंजीनियर का नाम लिया, ना मैंने जिसने कहा आप उसके जनाब पास बैठे होते हैं और उसको आपने आज तक मौक़िफ़ के ऊपर दलाइल देने से कभी आपने हमारे सामने नहीं लेके आए, ना मुफ्ती साहब से बात होने दी आपने। आप उसमें पूरे शामिल हैं, इस वजह से शामिल हैं कि जनाब हमने आज तक नहीं सुना कि आपने मलक कैसर को कहा कि भाई ये जो मौक़िफ़ है इंतहाई खतरनाक है, मुसलमानों को गुमराह करने वाला है और उलमा की हद तक है, गुस्ताखी है। आपने आज तक ये बयान नहीं दिया, अगर दिया है तो जनाब मुझे वो वीडियो ला दें। आपने मैं जवाब देता हूं, इसका जवाब मेरी मुकम्मल होने दो बात, नहीं, इसका जवाब वीडियो जनाब नहीं, उसकी वीडियो कादियानियों ने बनाई। कादियानियों का एक बंदा है सैफी, उसने जनाब जब आपका मौक़िफ़ ये सुना कि जनाब आपने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उसने एक मौक़िफ़ ये दिया, उसने कहा देखो कि भाई हम भी तो यही कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी से दावा नबूवत वो साबित नहीं है जो आप लोग इल्ज़ाम लगाते हो। तो हमारा ही मौक़िफ़ है ये जो मलक कैसर ने बनाया। वो जमात किस बताते हैं ना, बताते हैं, वो भी बताते हैं ना। तो असल ये है, क्यों असल बात भाई बताते हैं। उस्मान भाई एक मिनट हैदर भाई एक मिनट। मैं नीचे उस्मान भाई मेरी आवाज आ रही है? बैठ के सुनूंगा उनकी बात। अब आप हमें बताएं जो बंदा ये कहे। उस्मान भाई मेरी बात सुने, ये दोनों मुझे बात सुने उस्मान भाई। जो बंदा ये कहे, उस्मान भाई मजीद बात नहीं करूंगा, सवाल सुनो मेरा, सवाल सुनो। कब से सुन रहे हैं? जो बंदा ये कहे कि जनाब मिर्ज़ा कादियानी से दावा नबूवत साबित नहीं, उलमा शरीर और उलमा ने लोगों को धोखा दिया हुआ है, उसके बारे में ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? ये मलक कैसर। आप इधर उधर की बात लेके फिर रहे हो। हजरत ईसा अलैहि इस्लाम के बारे में मेरी बात सुने, पता नहीं कहाँ की। उस्मान भाई मैं बात सुने मेरी, मैं सीधी सी बात करूंगा। मैं ज़िया भाई के लिए, ज़िया भाई की तरफ आने वाली गोली के लिए अपना सीना दूंगा, लेकिन ये जो काशिफ है ना, ये मैं कसम उठाता हूँ ये कादियानियों का सहूलतकार है। ये पता नहीं मुसलमान है भी या नहीं, ठीक है। और उस्मान भाई अल्लाह की कसम उठाना, मैंने उधर भी मुफ्ती साहब को बोला, मुफ्ती साहब के पास अल्लाह की कसम उठाना, कैसर के अब्दुल्ला अल्लाह की कसम उठाना। अब्दुल्ला मेरी बात सुन, तुमने ये जो बात की है ना, उधर भी मुफ्ती साहब को बोला, मुफ्ती साहब के पास ऑडियो और लिखा हुआ मैसेज मौजूद है कैसर के। अब्दुल्ला मुफ्ती साहब को मुकम्मल इल्म है उसके अकीदे क्या है। अब्दुल्ला ये बात बताओ, तुमने कहा है कि काशी भाई कादियानियों के सहूलतकार, इसका प्रूफ दे बात का। हाँ बिल्कुल, वो हर मुसलमान जो मुसलमान को गाली देता है वो कादियानी का कसम उठा। अब्दुल्ला अल्लाह की कसम उठा, प्रूफ तो दो ना। मैं अल्लाह की जो बंदा कादियानियों को प्रूफ इधर सामने तुम्हारे बात सुनना नहीं, जो बंदा तुम्हारे सामने गालियां दे रहा है मुझे, मेरी माँ को गालियां दी, मेरी बहनों को गालियां दी। बात सुनो ये मुसलमान हो सकता है? अच्छा चले ये बात मान लेते हैं, ठीक है। हद मुबारक है जिस मुसलमान के हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं, वो मुसलमान नहीं है। इस बात को मानते हो?
इस बात को मानते हो? तो पूछो ना उससे, क्यों उसने मेरी माँ को गालियां दी, मेरी बहन को गालियां दी। मेरे उससे मैं चलो अब बात सुने यार। शादी शादी एक मिनट बात सुने अब्दुल्ला, मैं शादी, उससे पूछता हूँ, एक मिनट उस्मान शादी भाई, एक मिनट बात सुने लो जी। नहीं, उससे तुम्हारा पहले म्यार पूछो ये तो सही है, ना, क्यों दी अब्दुल्ला तुमने? बात तो सुनो, यार अपना अब बात माइक म्यूट, सुनो ना। अब्दुल्ला माइक। तुम्हारा म्यार ये है कि जो गाली दे वो कादियानी है, ये तुमने नहीं, वो म्यार कादियानी सेट नहीं किया है। है। नहीं नहीं भाई नहीं, बात मैंने ये सुनो। नहीं कहा, मैंने कहा है सहूलतकार है। अच्छा, फिर कादियानी नहीं है, सहूलतकार है। जो गालियां दे वो तो हो। आपका नेट चॉपर है यार। अब्दुल्ला मेरी बात सुन, जो बंदा गाली दे वो कादियानियों का सहूलतकार है, ठीक हो गया? आप ये कहते जो हो मुसलमान को गाली दे, मुसलमान को गाली, अगर मुसलमान को गाली। जो बंदा मुसलमानों की दिल आजारी करे और ये बोले कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, वो कौन है? उस बात का जवाब दे। ना किसी ने कहा है, ठीक है, वो मैंने कहा है अभी इधर मुफ्ती साहब को बुला लें, मुफ्ती साहब कुरान करीम पर हाथ रख के हलफ दे दें कि मलक कैसर का अकीदा ये है, तो मैं आपके सामने अभी माफी मांगूंगा। अच्छा, मलक कैसर ने ये बात नहीं की कि हजरत ईसा ठीक है, एक मिनट शादी एक मिनट। अब करनी तो बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। अच्छा अब्दुल्ला, ठीक है। अब्दुल्ला बात सुनो। वो जो दावा उसका है कि जो मुफ्ती साहब से उसने डिबेट की और तमाम कादियानियों ने भी सुनी है, वो डिबेट के जिसमें उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तुम लोग झूठ कहते हो, मिर्जा कादियानी का दावा नबूवत है, वो तो डिबेट सबके सामने है। अच्छा, आज तुम तो लोगों मुफ्ती के साहब ऊपर करने क्यों आए थे? नहीं उस्मान भाई, तो मुफ्ती फिर साहब ये डिबेट मुसलमानों से करने क्यों आए थे? उसने दलाइल कौन से दिए हैं कि नहीं भाई दावा नबूवत मुफ्ती साहब साबित नहीं? वो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि साबित है। सारे मसले की जड़ जो है ना, सारे मसले की जड़ ये काशिफ है। वो दलाइल किस बेस पे दे रहा था, किस ये सारे बुनियाद पर मसले दे की रहा जड़ ये था? काशिफ है। उस्मान भाई मेरी बात सुने, सारे मसले की जड़ ये काशिफ है। अब्दुल्ला है, काशिफ ने गलत क्लिप काट कर फतवा लिया। मलक कैसर कादियानी है, वो दलाइल दे रहा था कि मिर्जा कादियानी से दावा नबूवत साबित नहीं। लोरी भी यही कहते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे पीछे से कॉशन मिला है, मुझे पीछे से ये मिशन मिला है। उस्मान भाई बैक कैमरा ऑन करें। ये है कि भाई मुफ्ती साहब के सामने तुमने दलाइल देने हैं कि मिर्जा कादियानी से दावा नबूवत साबित नहीं, और उनको अब्दुल्ला भाई, साबित करना है तुम्हारी खत्म में अब्दुल्ला भाई और नबूवत उस्मान और भाई एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। उस्मान भाई, शान भाई आखिरी बात, ये उसके सहूलतकार है। उस्मान भाई, ये कादियानी है, मलक कैसर और ये उसके सहूलतकार है। चलो उस्मान भाई बैक कैमरा ऑन करें। यार एक मिनट रुक जाइए मेरे भाइयों प्लीज। उस्मान भाई बैक कैमरा ऑन करें, उस पर कुरान करीम पर हाथ रख कर बोले कि यार ये चीजें एक मिनट रुक जाइए भाइयों एक मिनट रुक जाइए प्लीज। चलें, अभी मैं माफी मांगूंगा, आइंदा उस ब्राड पे नहीं जाऊंगा। लाओ कुरान करीम लाओ, कुरान करीम लाओ, कसम खाता हूँ और मरज़ई बात करीम, मैं कुरान की कसम खाता हूँ, किसी मुसलमान का अकीदा नहीं कि मिर्जा कादियानी से दावा नबूवत साबित नहीं। ये सिर्फ कादियानियों का, लोरी कादियानियों का अकीदा है, और वो कहते हैं कि भाई इससे दावा नबूवत साबित नहीं। ये लोरी कादियानियों का अकीदा है। मुफ्ती साहब को बुलाओ, मैं कुरान की उनको कसम बोले, खाता हूँ, और जो इसका सुन्नतकार है वो कादियानी है, और कादियानियों के साथ ही उठाया जाएगा जनाब। तुसी मलक कैसर नु बुलाओ, मुफ्ती साहब को बुलाएं, उस्मान भाई और अब्दुल्ला भाई एक मिनट रुक जाइए, इतने सख्त मौक़िफ़ ना कीजिए, प्लीज रुक जाइए, प्लीज मेरे प्यारे भाइयों रुक जाइए प्लीज। मैं भाई कुरान की कसम खा ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बहुत बाइज्जत और हमारे बहुत मोहतरम हैं मेरे प्यारे, आप ज़िया भाई के रिश्तेदार हैं, प्लीज सुनिए। देखिए हम सब मुसलमान हैं और हमारा कॉमन दुश्मन मिर्ज़ई वहाँ बैठा हंस रहा है, हम आपस में क्यों दस्तगिरबा हुए हैं? प्लीज ये बातें हमें व्हाट्सएप पे करनी चाहिए। शानी भाई उसकी वजह ये है, इन्होंने उन्हीं कादियानियों के सामने कि भाई कादियानी से दावा नबूवत साबित नहीं है। जब लोग गुमराह हो रहे हैं और लोगों ने आके हमें शिकायत की, तब हमने कहा कि भाई तुम लोगों ने ये क्या लाइव मुसलमानों को अकीदा बताना शुरू किया हुआ है और उलमा की हद तक कर रहे हैं। वहाँ पे उलमा की ये इंसल्ट करते हैं, मेरे पास वीडियो मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भाइयों ने हमें आके बताया
और ठीक है कादियानियों की ब्राड पर इनकी डिस्कशन हुई है, शान भाई कैफी ने आके मेरी बताया सिर्फ कि एक भाई गुजारिश खान ये भाई, है शान भाई ये जी टोटल जी झूठ है, टोटल झूठ है ये। और मेरे पास वीडियो है, मैं अल्लाह झूठ पुष्ट बोल रहा नहीं हूँ। करता है ठीक है कादियानियों की। ठीक है मैंने आप दोनों के ये मौक़िफ़ पुष्ट सुन बनाई लिए है शान भाई मेरी एक ये। गुजारिश सुन लीजिए मेरी एक गुजारिश सुन लीजिए हुसैनी साहब की ब्रॉड पे वो कैसर साहब या ये लोग दिल लगी करने के लिए लाहौरी मौक़िफ़ को ऐसी बात कर रहे होते हैं, वो मजाक के लिए होता है, प्लीज उसको सीरियस मत लीजिए। शान भाई ये कौन सा तरीका हो गया, मजाक आप नहीं है। यंगस्टर को मैसेज दे रहे हैं, यंगस्टर को क्या शान भाई मैसेज आ रहा है? मसला हो रहा है, मसला हो रहा है, इनको तकलीफ हो रहा है, ये निकाल नहीं, दूसरे एक तरीके सेकंड से रहे हैं। अब्दुल्ला साहब एक सेकंड म्यूट लगाएं। शान भाई ये मसला काशिफ ये है, काशिफ सारा कसूर अकीदा काशिफ हजरत है, ये सारे फसाद की जड़ काशिफ है। एक सेकंड म्यूट लगाओ। देखें अगर अगर लाहौरियों का अकीदा जो है प्लीज लाहौरियों का अकीदा अगर मुसलमान मत दस्ते गिरवा शान भाई हों। शान भाई शान भाई इतनी शान बुरी बुरी गालियां, माँ मेरी शान को भाई गालियां दी हैं इसने आज देखें मेरी काशिफ ने, बात सुने ये भी नहीं जो मेरी गालियां बहनों दी को हैं ना गालियां दी हैं, अब्दुल्ला साहब ठीक है। आप अपने मौक़िफ़ हमने से अभी आप तक अपना इनको आप कोई बदतमीजी नहीं की। अब्दुल्ला साहब हैदर वड़ैश भाई अब्दुल्ला भाई देखिए मेरी बात सुने आप अपना अकीदा जब तक वाज़ह नहीं करेंगे ना तब तक जो है वो आप ये भी नहीं कह सकते जी आपको गालियां क्यों दी हैं। अगर आप अपना अकीदा वाज़ह कर देते हैं अदील तो वो ऊपर माजरत बैठा भी हुआ है, आपसे कर अदील लेंगे। ऊपर बैठा हुआ है, अदील ऊपर बैठा हुआ है, अच्छा मुझे ये और बताएं नीचे मुझे ये राजपूत है, बताएं अगर कोई बंदा नीचे राजपूत मजाक है। में भी ये दोनों बात बताएं सुने ना मैंने किया वाज़े बात नहीं किया, सुबह का 10 बार देखें कर चुका हूँ, एज लेकिन ए ये हो फिर पीछे पीछे आ जाते हैं क्योंकि ये इनका मकसद कुछ और है। अच्छा मेरी ये बात है सुने कादियानियों के सहूलतकार हैं, ये मेरी सिर्फ बात कादियानियों को तमाशा दिखाना चाहते हैं। मेरी बात शान भाई सुने जरा सुन लो मेरी शान बात भाई क्या कह रहे हैं ये। मेरी बात सुने जब हम मजाक में भी एज ए होस्ट क्योंकि जब हम एज ए होस्ट नहीं बैठे होते हैं ना तो अबू हमारी हसन बहुत भाई सारी हम लगे जिम्मेदारियां हुए हैं ना, हम जैसे भी लगे हुए हैं, इनको क्या तकलीफ है? होती हैं। यार आप मुसलमानों के इनकार कर रहे हो और लोगों को हमें हम मुसलमान नहीं है। अब्दुल्ला साहब देखिए आप मुसलमान हैं लेकिन आप जमात के खिलाफ जा रहे हैं ना। आप कौन सी अहले जमात के सुन्नत खिलाफ? अहले सुन्नत जमात है जो उसके मौक़िफ़ के खिलाफ आप मौक़िफ़ अपना के तो आप अहले कादियानियों के सुन्नत साथ का डिबेट जो कर रहे हैं ना आप। जमात का जो मौक़िफ़ है हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हैं। तो फिर आप अपनी जुबान से कुफरिया कलमा क्यों ये निकाल रहे हैं? काशिफ या ने वो आपकी पर्सनल ब्राड पे बैठने वाले जो हैं काशिफ ने पर्सनल छोड़ो, तुम वजूहात की सिर्फ वजह से ये सारा तमाशा खड़ा के किया बारे में क्योंकि अपना ये है अकीदा कादियानियों का बयान करो। सहूलतकार। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अपना अकीदा बयान करो, खत्म करो बात को। आज अच्छा आज ताहिर अहमद जो है ताहिर अहमद किसको उसने साबित करूं? एक गालीबाज को साबित करूं? साबित करो 70 बंदे बैठे हुए हैं उनके सामने गालीबाज को बता दो। साबित करूं? मैं तो तुम्हें मुसलमान ही नहीं समझता। और तू ना समझ मुसलमान को गाली देने वाला मुसलमान नहीं है। यार भाई आप ये फिर जो एक दूसरे के पर्सनल साथ लड़ाई हो रही है करें ना मेरी मैं माँ एक दूसरे के साथ बात ना मेरी करें माँ ना को आप मेरी माँ को मेरी अबू हसन बहनों भाई, को एक दूसरे के अब्दुल्ला साथ भाई आप मुसलमान है और डायरेक्ट काशिफ बात भाई ना एक करें। मिनट रुक जाइए, तेरी माँ क्या है? ये मुसलमान है, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, ये मेरी एक पक्का गुजारिश है, ठक्का काफर है, प्लीज ये प्लीज कादियानियों रुक का जाइए। सहूलतकार मैंने है। आप दोनों को काशिफ साहब को भी अब्दुल्ला भाई को भी मैंने देखा हुआ है कादियानियों मिर्जइयों से बहस करते लड़ते हुए डिबेटिंग करते हुए, तो मेरे ख्याल में आप दोनों जो है ना मुसलमान हैं, आप लोग दोनों हिम्मत से काम लेते हैं, प्लीज आपस में मत लड़िए। अगर कोई कंफ्यूजन हुआ हुआ है अगर कोई आपस में कंफ्यूजन हुआ है तो हमें वैसे सॉल्व करना चाहिए प्लीज। ये सिर्फ जाती लड़ाई हो गई है, इसको समझिए प्लीज। काशिफ भाई से भी मेरी दरखास्त है और अब्दुल्ला भाई से भी प्लीज, जो भी आप गलत फहमी हुई है जिसकी वजह से जी गाली जी गलौज शान हुआ है, भाई शान भाई हमारे जितने मुसलमानों का भी ये उलमा अकीदा है, है कि हजरत ईसा शान भाई अलैहिस्सलाम हमारे जितने भी उलमा है सर आंखों पर वो हमें अल्लाह बार ताला बार ने कहते हैं आसमान पर कि जिंदा लड़ाई उठा नहीं दिया। करनी, लड़ाई ये नहीं उस करनी। चीज का इनकार कर मैं रहे हैं। जिधर भी जाता हूँ ये ये उस पीछे आ चीज का जाते हैं, इनकार कर जिधर रहे हैं। जाता हूँ पीछे आ जाते हैं, जिधर हैदर जाता है शान पीछे भाई आ जाते हैं। ये शान भाई इसका हल पता क्या जान है? उधर ये आके कि माँ एक बहन की मिनट गालियां देते हैं, किसको एक दिखा रहे हैं ये मिनट लड़ाई? सब सहूलतकार सुने हैं ये दें। कादियानियों। अब्दुल्ला भाई ऐसा उस्मान भाई करें, को बोलने दें। शान भाई इसका हल ये है, आप ऐसा करें कि जो मौकफ है जिसके ऊपर बात हो रही है, मतलब कैसर के हवाले से बात हुई, फिर उन्होंने इनको अकीदा दिया और ये मतलब कैसर को सपोर्ट करते हैं, और मुफ्ती साहब को जब इनके ब्राड पे जाते हैं तो जनाब वो दलाइल देते हैं, मुफ्ती साहब से मुनाजरा करते हैं कि जनाब मिर्ज़ा कादियानी से दावा नबूवत साबित नहीं है। अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का अकीदा रखते हैं तो वो तो ना एक मिशन है। तो जब मुफ्ती साहब पूछते हैं या हम पूछते हैं, फिर ये जनाब भागते हैं, जवाब नहीं देते और मतलब कैसर की से सपोर्ट करते हैं हर हवाले से। तो एक एक मिनट इनको दें, एक मिनट मुझे दें, मैं बात करता हूँ। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब ले दें इनसे, एक बात का जवाब कि मुफ्ती साहब से जो इन्होंने डिबेट की मलक कैसर ने,
اور تب یہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے 3-4 کفر بولے، اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور مفتی صاحب کو انہوں نے براڈ سے نیچے اتارا. تو بتائیں کہ یہ کس وجہ سے مفتی صاحب سے ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ بھائی مرزا قادیانی سے دعویٰ نبوت ثابت نہیں ہے، جبکہ مفتی صاحب دلائل دے رہے ہیں اور یہ انکار کرتے ہیں. کیا یہ مسلمانوں کا، شان بھائی آپ فیصلہ کریں، کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی سے دعویٰ نبوت ثابت نہیں ہے اور اس کے اوپر علماء کو دلائل دیتے پھریں یہ لوگ؟ تو عثمان بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سیریس بات ہے اور اس کو ہمیں سالو کرنا چاہیے. یہ تو دل لگی میں مجھے معلوم ہے، حسینی صاحب کی براڈ پہ میں نے کئی دفعہ سنا ہے یہ دل لگی میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ملک قیصر، عبداللہ، یہ وہ، کیونکہ حسینی صاحب یہ بات کرتے ہیں لاہوری گروپ والی کہ مرزا نہیں قادیانی، شان بھائی نہیں آپ پھر لیکن یہ بات غلط بات کر رہے ہیں. ہمارے مفتی شان بھائی، صاحب تک نہیں شان جانی بھائی، چاہیے تھی. نہیں شان بھائی، مفتی صاحب نے کل بھی براڈ کی، آج بھی ان کو بلایا، ان کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا ہے. یہ دل لگی نہیں بلکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی سے دعویٰ نبوت ثابت نہیں ہے، جبکہ علماء شریر ہیں اور شر پھیلاتے ہیں جان بوجھ کے. مرزا یہ تو غلط ہو، قادیانی اور مرزا انجینئر پہ لعنتیں دلواتے ہیں جان بوجھ کے. یہ یہ غلط میرے ہو پاس چکا ہے. ویڈیو، میں نے آج 2 بار ویڈیو چلائی ہے اور میں شان نے بھائی ان کے عقائد قادیانیوں والے ہیں اور یہ منکر حدیث بھی نکلے ہیں. السلام علیکم شان بھائی اور کاشف بھائی، 1 منٹ دینا مجھے پلیز. شان بھائی بول لوں؟ بسم اللہ کیجئے. ہاں جی، میں راؤ نعیم بول رہا ہوں بھائی. یہ مفتی صاحب کے بغداد جانے سے پہلے ان 4 بندوں نے، مطلب اس میں راجہ سہیب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ آپ کو ہم براڈ پہ لائیں گے، نیچے پھینکیں گے مرزائیوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے ساری. اور ہم نے اس بارے میں مفتی صاحب سے مشورہ کیا ہے اور یہ ہے وہ میسج میں نے مفتی صاحب کے پاس بھیجا ہے کل. تو میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے. یہ آپ مفتی صاحب کے بغداد سے کافی دن پہلے کا وہ ہے پروگرام. تو میں 1-2 دفعہ سمجھ نہیں سکا ان کی چال کیا ہے. جی ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم نے اس بات میں مفتی صاحب کو کانفیڈنس میں لیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں ایک دن گیا تو وہ ٹروئی سیکر نے مجھے گڈر کی اولاد اور یہ اولاد کر کے انہوں نے مجھے نیچے پھینک دیا، شعیب رازا نے. دوسری دفعہ جب میں گیا تو ملک طلت آیا، جی اللہ دی اکھ نہیں سی، اللہ نو پتہ نہیں سی، اللہ نو اے نہیں سی، اللہ کاکا ہے، اللہ چلا ہے. میں انہوں کہا جی وہ بکواس بک رہا تھا. تو میں نے کیسر کی براڈ کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور براڈ کی نہیں بات کر رہا. تو کیسر کی براڈ پہ میں کہا اینو جو ہے نا منہ بند کرو، ایدا کتے دی طرح بھونک رہا، مطلب اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے. انہوں نے چک کے مینوں تھلے مار دیتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. ہن اے پلان کی ہے اے مینوں نہیں پتا، اے میرے نال انہوں نے کیتا. اس تو بعد میں انہاں دی براڈ تے بالکل ہی جانا چھڑ دیتا گیا. میں کہ اے منافق نے، مطلب اس دن بھی کیسر نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ السلام فوت ہو چکے نے تے مرزا غلام احمد قادیانی دا دعویٰ ہے ہی نہیں. تو اس تو بعد کافی سارے مرزائی اتنے بہنے شروع ہو گئے سن، مطلب ہے ٹرو سیکر، تارک تے ٹونی تے ہور 8-10 بندے. تے میں جدو جانا انہوں نے وہی وہ تلت والیاں گستاخیاں کرنیاں آپ وسلم دے سارے. تے میں جدو جانا میں تے منہ پھٹ، میں نہیں خیال کردا، کوئی گال کڈے تے میں نہیں چھڑدا. تے انہوں نے چک کے مینوں ماریا تھلے جناب. میں مفتی صاحب نے شکایت کی تھی کل بھی کیسر دی براڈ تے پرسوں میں جا کے جدو انہوں نے مفتی صاحب نو تھلے سٹیا، مفتی صاحب نے یہی پوچھا کہ تو صرف اتنا دس دے کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ کنسیڈر کردا ہے یا وفات شدہ کردا ہے. انہوں نے تو میں وہی تے مفتی صاحب نو تھلے سٹ دیتا. میں بھی اتنے اس وقت بیٹھا سا. تے ہن انہاں دی جڑی پلاننگ ہے وہ مینوں نہیں ہے، لیکن انہوں نے 100% مینوں انوالو کرنے دی کوشش کی، لیکن مینوں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتی اور میں انہاں دی براڈ تے گیا ہی نہیں. 2 دفعہ انہوں نے مینوں سٹیا ہے. ٹرو سیکر نے مینوں گالاں کڈیاں، گڈر دی اولاد، ماں دی اولاد. ایک دن میں جا کے کیسر نو کہا میں کہ اے چنگی گل نہیں ہے، تو ساڈی توہین کراندا ہے انہاں کافراں دے اگے. تے اس تو بعد میں نہیں گیا. پھر یہ جڑی ساری کہانی ہو رہی ہے ہن اس کے اندر کی مسئلہ کی ہے. اگر حیدر صاحب کہہ دیں جی میں حضرت عیسیٰ السلام نو زندہ ثابت کردا ہوں یا وفات شدہ ثابت کہہ دے، بس مختصر جی گل اے کیڑی پھپے کٹنی جی اودا بھی وہی کیتا میرا بھی وہی کیتا، اے بالکل غلط ہے. جڑی عثمان بھائی گل کر رہے ہیں بالکل صحیح. جی میری گل ختم ہو گئی. یہ پچھلے 2 گھنٹے سے یہ براڈ جاری ہے اور بجائے اس کے کہ یہ 1 سیکنڈ لگا کے یہ کہہ دیں کہ جی ہمارا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، بات وہیں پہ ختم ہو جاتی. نہیں، یہ تعویلوں پہ تعویلیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو آپ کا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے. بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک قیصر اور ہمارا اور آپ سب کا ایک ہی عقیدہ ہے. تو تب ہم بولے کہ نہیں بھائی ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے جو ان کا عقیدہ ہے. تو یہ 2 گھنٹے سے
बात को घुमा रहे हैं, सिर्फ छोटी सी बात ये नहीं कर रहे कि जी अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा दिया। और मुनाफकत देखें, अब्दुल्ला कहता है कि मुफ्ती साहब को मतलब कैसर के अकायद के हवाले से मैसेज आया हुआ है। हमने कहा कि जब मुफ्ती साहब को मैसेज आया हुआ है, ठीक है, तो वो आके लाइव क्यों नहीं बता देता? मुफ्ती साहब ने भी कहा कि भाई वो लाइव क्यों नहीं बता देता। फिर जब डिबेट हो रही है, मैं हैरान हूँ कि भाई वो मुफ्ती साहब को झूठा साबित करने के लिए उनसे डिबेट की जा रही है और ये बैठे सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और कादियानी वहां पे मजे ले रहे हैं। तो ये इनके सारे जो करतूते हैं इनकी, वो सबके सामने नजर आ रही हैं। और ये जो अभी प्लान बता रहे थे ना दादाजी, ये प्लान मैं बताता हूँ, ये प्लान मुझे भी सुनने में 2 बंदों के थ्रू मुझे सुनने में आया कि इन्होंने कहा कि कादियानियों की बराड़ पे हमने बैठना है और उनको अपनी बराडों पे बिठाना है। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए इन्होंने जनाब इन लोगों को बीच में शामिल किया। यूसफी हो गया, सुहेब हो गया, इनको जनाब हुसैनी की बराड़ पे ले जाके वहाँ पे इमामों को गालियां दिलवाई गई और इसने वहाँ पे आला हजरत को काफिर कहा, मलक कैसर ने, और फिर वहाँ पे उनको गालियां दी गई। जब लोगों ने इनको रोका तो इन्होंने कहा कि भाई हमारी मर्जी, हम जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वो गालियां सिर्फ इमामों देते थे और उल्टा जो है ये गालियां इनको देते थे। तो ये सारी गेम चला के इन्होंने बदनाम किया अहले सुन्नत को। और फिर उनमें से कादियानी निकाले, उनको कहा देखो यार हम तो ऐसे हैं, हमारा तो ये अकीदा है, मुसलमान ऐसे करते हैं, तुम्हें गालियां देते हैं, तो हम जो है बिल्कुल आपसे सही चलेंगे, आप ना हमारे पास आए, हमें अपने पास बिठाने दो। ये गेम सारी चला के इन्होंने सारी ट्रैफिक को अपनी तरफ करने की कोशिश की और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए ऐसे अकीदे इन्होंने दिए ताकि उनसे हमारी लड़ाई हो जाए और सारे कादियानी आके तमाशा देखे और हमारी बराडों पर आए। ये इनका तरीका था। उस्मान भाई अच्छा भाई एक मिनट जरा उस्मान भाई एक और बात क्लियर कर दें कि ये जो कादियानी बिठा के और ट्रैफिक को कंट्रोल करके कादियानियों को फायदा कैसे हो रहा है, वो अगर कादियानी से बात करने के लिए ये कहा जा रहा है हाँ ठीक है जी हज़रत तौबा नौज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, मिर्ज़ा का नबूवत का दावा नहीं है, कादियानी इस चीज़ का फ़ायदा क्या उठा रहे हैं और कैसे ख़त्म नबूवत के काज को नुकसान पहुंच रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। और ये हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है आखिर, ये तो पता लगनी चाहिए ना, पहले ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। के लिए तो बहुत ज़्यादा ये शॉकिंग सूरत हाल है। मैं तो अपने सारे भाइयों को, आप लोग इतने सारे अपना टाइम देते हैं, ख़त्म नबूवत के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी मैंने देखा था। मैं वापस आया हूँ कुछ अरसे बाद और मैं दस्ते गिरबान देख रहा हूँ मेरे भाई आपस में, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं उनसे भी रब्ता करूँगा और मैं ये चाहता हूँ कि हम आपस में मिल के काम करें, हमारा एक ही मकसद है। प्लीज़ भाई जो मैंने सवाल रखा है ना उसको आप समझिए, आपको मामले की नज़ाकत का पता चलेगा कि ख़त्म नबूवत का कॉज पे कैसे नुकसान पहुंच रहा है, मर्ज़ई कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स मीन के 1974 में असेंबली में जो सारा कार्रवाई हुई थी सारी, वो मर्ज़ई उसको वो कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। अब ये फ़ायदा उस चीज़ को जा रहा है। अभी मैंने रखा है सवाल, उस्मान भाई या आसिफ भाई अगर बता दें कि हमें तकलीफ़ किस चीज़ की है असल में, कि ये क्यों ट्रैफिक के चक्कर में, या वल्लाह जाने कौन सा मिशन है कि ये सारे कादियानियों की हाँ में हाँ के उनके बिठा के उनसे बात की जा रही है। ये क्या फ़ायदा हो रहा है कादियानी को इस चीज़ का, वो किस चीज़ को फ़ायदा उठा रहे हो और ख़त्म नबूवत के काज को क्या नुकसान पहुंच रहा है इससे, ये ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे दफ़ा कासिम जी शान भाई, मुख्तसर इसकी बैकग्राउंड मैं थोड़ी बताता हूँ। जब ये अकायद इन्होंने प्रमोट करने शुरू किए, लोगों ने आके हमें बताया, तो काशिफ भाई चले गए मलक कैसर की ब्रॉड पर। जब उनकी ब्रॉड पर, मलक कैसर की ब्रॉड पर काशिफ भाई गए हैं तो इनसे सख्त कलामी हो गई, दोनों तरफ से तू तराक हो गई। ऊपर से इनकी गालियां, जो कि काशिफ भाई कहते हैं मैंने गालियां नहीं दी लेकिन मैंने सख्त अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल किए हैं। लेकिन मलक कैसर ने वहाँ पे गुस्ताखी की कि देखो ये अपनी नबी की सुन्नत पूरी करके गया है और बता के गया है कि ये नबी की सुन्नत है और ये अपनी नबी की गया है। माज़अल्लाह उसके ऊपर फतवा कुफर जो है वो मैं उस वक्त उस्मान भाई, मैं उस वक्त वहीं बराड़ पे बैठा हुआ था जब इसने ये कहा था, बिल्कुल सही कहा है। उसने कहा था ये अपनी नबी की सुन्नत पूरी करके गया। मैं उस वक्त बराड़ पे बैठा हुआ था, काशिफ भाई को उसने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। मैं बिल्कुल मतलब मैं सुन रहा था उस वक्त। सॉरी
और जी इनको वो वीडियो मैंने अल्फाज सुनाई, इस्तेमाल किए थे, वो मैंने गाली कोई नहीं दी थी, वीडियो पड़ी हुई है। वो रिकॉर्डिंग मैंने इनको सुनाई, और वो रिकॉर्डिंग जब इनको लाइव सुनाई गई कि भाई ये फतवा कुफर बनता है और कुफर है कि नबी की सुन्नत अगर तुम कहते हो, कहते मैंने सवालिया कहा था, तो सवालिया भी नहीं बनता, उन अल्फाजों से रजू बनता था। तो बजाय आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस काज को नुकसान पहुंचाने की खातिर कोई भी झूठ बक सकते हैं और अपने अल्फाजों से रजू नहीं करते, कहते हैं जी हमने सवालिया कहा था। अगर सवालिया कहा था तो क्या ये सवालिया बनता है कि ये अपनी नबी की सुन्नत पूरी करके गया? कभी भी ये सवालिया नहीं बनेगा। इन्होंने यहाँ से जब बात चली, मुफ्ती साहब इराक पे थे, जहाँ से इनको बात मिली कि अब तो जनाब ये हम पर फतवा लगाने पर आ गए हैं, तो इन्होंने ख़त्म नबूवत के काज को नुकसान पहुँचाने के लिए ये जो अपने अकायद थे इनको तेज़ी से बढ़ाना और लोगों को बताना शुरू कर दिया। वो वीडियोज़ भी सामने आ गई और उसका नुकसान ये हुआ कि जो उलमा सबसे पहले उलमा जिन्होंने बराहीन अहमदिया के दौर में ही मिर्ज़ा कादियानी पर कुफर का फतवा लगाया था, वो भी चकनाचूर हो गया। 1974 की जो असम्बली में मिर्ज़ा कादियानी के दावा नबूवत और उसकी नबी अलैहिस्सलाम से अफजलियत जो साबित कर दी कि मोहम्मद उतर आए हैं फिर हम में और कैसे बढ़ के हैं अपनी शान में, जबकि उससे दावा नबूवत भी नहीं था, तो फिर वो 1974 की कार्रवाई भी ख़त्म हो गई। और ईसा अलैहिस्सलाम का जो अकीदा जो कि गामदी का भी है, हुसैनी का भी है, दूसरे लोगों से भी ये अकीदा आपको मिलेगा। तो मुझे ज़रा निकलना है, अभी आवाज़ आई है, तो आप बात करो, मैं करता हूँ बाद में। काफ़ी हद तक समझ रहा हूँ। प्लीज़ मेरी तो बस यही गुजारिश है कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे मिल पे, और हम व्हाट्सएप पे भी एक दूसरे से रब्ता करेंगे, क्योंकि हम मिर्ज़ाइयों को हंसाना नहीं चाहते। तो जितना हो सके मैं आमिर नज़ीर भाई से भी रब्ता करूँगा, तो मुफ्ती साहब से भी रब्ता करूँगा, ताकि हम जो भी भाई हैं जो हमारे बड़े हैं आपस में गुफ्तगू करें, ये प्रॉब्लम सबको सॉल्व करें प्लीज़। अगर आपने आप जैसे बात होती है ना, जी जी जी, एक बात हाईलाइट कर दूं मैं, शान भाई, जो मेन मकसद है ना, आपकी नीयत सही है, ठीक है ना, उनकी चले मैं फॉर एग्जांपल बेनिफिट ऑफ डाउट अगर वो कह रहे हैं, ठीक है ना, अगर वो हिचकिचा रहे हैं, वो एजिटेशन फील कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहे कि जो आपका अकीदा जो हमारा अकीदा है, उनकी ब्रॉड से एक वाज़ेह मैसेज जा रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह वफ़ात हो गई है, जो कुरान के सरासर अगेंस्ट जा रहा है। जो नए मुस्लिम हैं उनको ये मैसेज जा रहा है, जो यंगस्टर्स हैं, जो मासूम मुसलमान हैं, उनको ये मैसेज जा रहा है, जो तड़प है ना। और दूसरी बात जो इन्होंने शाह साहब ने हमेशा कंबाइन करने की, हमेशा उन्होंने यही कहा है कि कंबाइन रहना यार। अभी तक इस मामले को जो रफ़ा दफ़ा, आज से कोई ऑलमोस्ट ये महीना होने वाला है, इसी वजह से ये रफ़ा दफ़ा कर रहे थे। शाह साहब कह रहे थे इन्हें टाइम दो यार, जाने दो, छोड़ो, इन्हें टाइम दो, देखते हैं क्या है। फिर आज फाइनली उन्होंने भी इन्हें ब्रॉड लगाई और इन्हें बुलाया कि आओ भाई आके अपने अकायद क्लियर करें, और आपकी भी नेक नीति आप करें, ज़रूर करें, हम भी यही चाहते हैं। हम सब मुसलमान एक छत के तले इकट्ठे होकर बैठे, हमारी भी यही ख्वाहिश है। और गुजर भाई शाह 60-70 कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो आपस में, अभी जाके उनसे बात करके जो भी सख्त अल्फाज बोले वापस लो। तब मामला था पर्सनल का, ठीक है, अभी मामला है अकायद का। प्रॉब्लम ये, हमें कोई मसला नहीं है। अब ये अगर कहा जाए कि यार तुम्हारे अकायद क्या हैं, या जो तुम्हारे अकायद है, व्हाट इज दिस यार, क्या इतनी परेशानी हो रही बताने में अकायद की? और कौन से सीक्रेट मिशन है यार जो अकायद से बढ़ के हैं, और जो सब मुसलमानों की मतलब वो इनकी वीडियोस बना के कादियानी वो लगा रहे हैं कि मुसलमान मान गए हैं। ये कौन सा तरीका है? आप देखें ना कि इन्हें वो काशिफ भाई ने अगर कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो वो इनको कितनी तकलीफ हुई है। मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा माइक म्यूट है। आपकी आवाज आ रही है जी। तो ये इन्हें कितनी तकलीफ हुई है कि यार इन्होंने हमारे खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इन्हें इस चीज की तकलीफ अभी तक जरा बराबर भी नहीं हुई कि यार आपने मुसलमानों के जो एहसासात है ना उनको आपने कितना मजरूह किया। आपने शाह साहब की आपने जो है वो उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया है ना, वो कभी भी कोई एक आलिम के साथ ये रवैया नहीं इख्तियार कर सकता। शाह साहब को बराट से नीचे उतार के तो कहा कि तलत मलक साहब आपसे आगे हमें कोई नहीं है, शाह साहब को नीचे उतार दिए।
और जब पूछा कि भैया आपने शाह साहब को नीचे क्यों उतारा है, तो आगे से शाह साहब की तस्दीक की कि शाह साहब को तो आता जाता कुछ भी नहीं है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये मलक कैसर ने ये हरकत की है। ये उसके बाद अब जो इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि जी उससे नबूवत का दावा साबित नहीं है, आज ही उसका रिजल्ट सामने आ गया है। ताहिर अहमद जो है आज सुबह ही ये मलक कैसर की बराड के ऊपर बैठ के ये बात कर रहा था कि भाई जब मिर्जा साहब से साबित ही नहीं है नबूवत का दावा, तो आप लोगों ने काफिर क्यों करार दिया? फिर ये किताबें जो इतनी लिखी हैं उसके रद्द के अंदर, मिर्जा के रद्द के अंदर, ये फिर क्यों लिखी गई हैं? फिर ये जो 74 की असेंबली के अंदर उसको काफिर करार दिया गया, कादियानी को काफिर करार दिया गया, वो क्यों काफिर करार दिया गया? तो ये देखें आप कि ये जो दिलादारी पूरी उम्मती मुसलमा की कर रहे हैं उसका इन्हें एहसास कोई नहीं है, लेकिन अब उनको गालियां पड़ी हैं तो उसका उन्हें कितना दुख हुआ है, कितनी तकलीफ हुई है। और भाई आपको गालियों के पड़ी है, हमें आपकी आखिरत की पड़ी है। क्या आप कहीं इसी कुफर के साथ इस दुनिया से ना चले जाइएगा? इस दुनिया के एक लम्हे का किसी की जिंदगी का पता कोई नहीं है, दूसरा सांस आना या नहीं आना ये भी नहीं पता किसी को। मैं इंशाल्लाह मैं अपने तमाम भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, थोड़ा सा मौका दीजिए, मैं उन सब से भी बात करूँगा और प्लीज़ हम एक मीटिंग रखेंगे तो इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारा काज एक ही है, मिर्ज़इयों के खिलाफ जंग करना। प्लीज़, तो मैं इजाज़त चाहूँगा इसके साथ, इंशाल्लाह फिर मैं राब्ता करके ना आपसे फीडबैक प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू सर। जी शान भाई जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और अब बहुत प्रॉब्लम ये है जैसे हमारे डिबेटर हैं और उनसे बढ़ के कादियानी को प्रेफरेंस ये तो हमें मंजूर नहीं। मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ कोई इख्तिलाफ नहीं है। अभी अकायद का मामला तो आज मैंने ब्रॉड सुनी तो मुझे पता चला ये कहानी ये चल रही पीछे। अली खान भाई ये हमें ब्रॉडों पे लें ना लें, हमें ब्लॉक कर दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये मौका भी ना दें। ये करें कादियानी से, खुद करें डिबेट, हमें ना ये मौका दें, हमें कोई इस चीज की दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना जी। हमें सिर्फ और सिर्फ ये इख्तिलाफ है कि भाई आप अपनी बराडों के ऊपर कुफ्री अकायद क्यों आप बयान कर रहे हैं, आप मुसलमानों की दिलादारी क्यों कर रहे हैं। आप कादियानियों को रिश्ते दें, उनके साथ जफ्फियां डालें, उनको बेटियों के रिश्ते दें, उनसे बेटियों के रिश्ते लें, आप जो मर्जी आप करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है, वल्लाह लज़ीम हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ अकायद ना बयान करें, मुसलमानों की हद तक ना करें। मुसलमानों ने जो मेहनत की है, आज तक कुर्बानियां दी हैं, सन 1953 के अंदर जो मुसलमानों ने 15 से 20 हजार मुसलमानों ने जानों का नजराना पेश किया है, वो सारी जो उनकी शहादतें हैं ना उनके ऊपर पानी ना फेरे। 74 के अंदर जो मुसलमानों ने मेहनत की और मेहनत करके उनको काफिर करार दिया, उसके ऊपर पानी ना फेरे। जी अली खान भाई। आसिफ भाई यही मैं ये अपना यही इस बारे में रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ कि इसमें जब चले इनको शाह साहब से तो मसला हो सकता है तो उन्होंने वो भी माफ़ कर दिया कि पर्सनल कोई बात नहीं जी, मिलो जुलो सारे जाके भाई जिसने कोई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया वो जाके उनसे माफ़ी मांगे। और हमने किया भी ऐसा, हमने कोशिश भी की, लेकिन फिर भी हमें तंज किया जाता रहा इनके जिनको ये फॉलो करते हैं उनकी तरफ से भी डायरेक्ट, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब चले शाह साहब से इनको मसला है कि उधर सख्त रवैया इख्तियार करते हैं, जिस तरह अब डॉक्टर सैयद होली स्पिरिट साहब को एक बंदा उठ के कह रहा है कि जी डॉक्टर साहब आपने ये मर्ज़इयों से बात नहीं करनी, लानत है यार ऐसी ब्रॉड पे, मेरी तरफ से लानत। मैं बजाते खुद अपनी लानत का जिम्मेदार करता हूँ उस बंदे पे जो अपने ही अपने उलमा को, अपने जो इल्म रखते हैं, जिनको हम सुनते हैं, उनको ये सिखाया जा रहा है कि आप ये ना कहे जी कादियानी गुस्सा कर जाएगा। मेरी चिड़ चढ़ गई, मैंने कहा जी कादियानी को बैठाओ गोद में, इनकी को पैम्पर वैम्पर को लीक है वो चेंज कर दो, झूले दो इनको, लोरी सुनाओ के इनको सुलाओ इधर अपनी गोद में बैठा के, ये कौन सा काम है यार। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो अहदीस की नफी ना की जाए, सिर्फ इसके लिए कि कादियानी हमारे पास बैठे हैं जी, हम कोई मिशन है, बढ़ गया भी मिशन ऐसा। हम तो इस चीज जब फिर वही बात आज मुझे बड़ी पसंद आई कि जब अकायद की बात है ना फिर तो बात होगी आपस में, हो किस तरफ भी यार तुम ये गलत कर रहे हो, अली खान तुम ये गलत कर रहे हो, ये ऐसा नहीं बोलो, ये इस्लाम के खिलाफ है। हमारे उलमाए दीन के 1857 से लेके अब तक की जो जंग चल रही है कादियानी दज्जालियत के अगेंस्ट, वो खराब हो रही है। ये नहीं बात करो इस तरह, बढ़ गया मिशन सारा कुछ यार।
पता नहीं कौन सा कब जीतना है। जब ये क्लियर हो गया कुरान पाक की तरफ से भी, मैं मतन बयान कर देता हूँ कि जिसको अल्लाह ताला हिदायत देगा उसको कोई बंदा काफिर कर नहीं सकता, जिसको अल्लाह ताला हिदायत नहीं दे सकता उसको बंदा के मुसलमान कर नहीं सकता। तो कौन सा मिशन है ये वाले, बताया जाए हमें। जब कादियान की हाँ में हाँ मिलाई जा रही है और तार अमजद जैसा चवल बंदा उठ के कह रहा है कि जनाब लो जी तुम लोगों की सारी मेहनत जाया होगी, लानत ऐसे मिशन पे। अब जी बाद में कोई सरप्राइज और सस्पेंस क्रिएट करके ट्रैफिक कंट्रोल करके बड़े अखलाकियात का मुजाहरा करके कादियानियों के साथ जनाब कादियानियों से जी निशान 85 की बात ना करे। हजार हाथ दफा मैंने ब्रॉड पे ये बात सुनी है कि जी हम अपनी तरफ से नहीं बयान करते, जो हकायक है हम वो करते हैं। लो मतलब जब उलमा किसी चीज को पढ़ते हैं, जिस चीज का तज्जिया करते हैं, अपने अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, अपने सुनने वालों को उनके बारे में बताया जाता है कि यार ये इनका सोच, लिखने वाले की कादियानी की सोच ये है, उसके पैरोकार की सोच ये गंदी सोच थी, तो उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जनाब हम अपनी तरफ से बयान कुछ नहीं करते, जो किताबों में लिखा वो करेंगे। ये सीधा हमला नहीं है। और हमें सबक साथ में ये सिखाया जा रहा है कादियानियों की ब्रॉड पे जाके मुसलमान आपस में न लड़े, जो अपनी ब्रॉड पे बैठ के कादियान